Yes, Assalamualaikum everyone. A very warm welcome to this session.
Before I ask Mr. Reed to start the session formally, I request you all to please raise your hand if you can hear me. Ji, please raise your hand if you can hear me. ठीक हो गया. And I request all those participants whose their cameras are turned off, please turn on your cameras so we can see you as well. Ji, please turn on your cameras. अभी भी I can see कुछ participants के cameras on. Please turn on your cameras. And I'm expecting that cameras will be on, turned on throughout the session. Okay? So we can see you that you are engaged in the session properly. Okay, over to you, Mr. Reed. So, how many participants are we having? 73 We participants. have something in the chat box as well. Assalamu alaikum everyone. This is Samreen Asar. I am acting head of department research and holistic development. I welcome you all for today's session on co-curricular activities and holistic development programs. This program, this session is meant to be addressed to the CCA coordinators. We are going to discuss the updated policies, procedures, forms that we have developed for data maintenance, and the for makerspace clubs and CCA clubs. I request you all to please turn on your camera throughout the session. If you have any query, note down your query, and we are going to take all the queries at the end of the session. Keep your microphone turned off during the session. And I request you all, and I'll request you again at the end of the session before taking the queries, that if your query is already answered, please be attentive throughout the session, and if your query is already answered, do not repeat that query. Give a chance to as many people as we can answer. So, Ms. Humaira is sitting with me. She is in charge of co-curricular activities and holistic development programs. She is going to give you a brief overview of the CCAs that are planned for the academic session 2023 and 24. Then she'll discuss the data maintenance form that has been developed on AIS for the record keeping. So over to Ms. Humaira, and later on I'll discuss about the registers and further a few more things. Thank you. Thank you, Samreen. Assalamu alaikum. I'm Humaira APSACS, and I'm looking after the co-curricular activities in the research and holistic department. First of all, Department of Research and Holistic Development provides exceptionally high standard enrichment programs for students' holistic development. The department operates in accordance with high quality academic standards. Therefore, all functions of the department are aligned with the mandate of the Chief of the Army Staff directives, national education policy, and international benchmarks. APSACS co-curricular activities and holistic development program includes varied programs that we have introduced for the holistic development of the students. The programs that we have introduced are co-curricular activities, CCAs, which includes both external and internal. Internal are basically those who which are suggested by APSACS, और external वो हैं जो time to time हम federal board के साथ IC cap, then ये different आपके time to time kangaroo competitions, maths competition, ये सारे के सारे जो time to time we are sharing with you, ये सारे आपके external co-curricular activities हैं. Then we have value education program. Basically, it's a program that has that is embedded in the curriculum as well, and then
hidden curriculum, academics, and in both way we are running this values education program. Environment sustainability, which includes tree plantation, tiny forests, solid waste management, and water conservation. Community service, in which students visit different local schools, hospitals, orphanages, awareness walks, and awareness talks. Then we have Proud Pakistani, where we celebrate different national days and anything related to Pakistan. Financial literacy program, in which we have collaborated with State Bank of Pakistan. इसके अलावा we have anti-drug awareness program, crisis management, bullying prevention, cyber safety. All these programs, our basic aim is to develop the students in such a way that their holistic development is ensured. One thing I must clear, कि जब भी ये प्रोग्राम्स किए जा रहे होते हैं, चाहे आपका co-curricular activities हो, values education program हो, cyber security हो, the end aim is to create a civic awareness among our students. By civic awareness, I mean it's not just filling of the records that we have introduced all these activities या programs. उसका मकसद ये है कि बच्चे ये सब चीजें internalize कर लें और इस हद तक internalize कर लें कि उसको वेदर टीचर कह रही है या नहीं कह रही, वो खुद से अपनी ऑब्लिगेशन फील करे कि ये मेरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर इंस्टेंस आपका दे नीड टू स्विच ऑफ द लाइट इफ दे आर नॉट यूजिंग इट, या अगर इफ दे सी कि भी टैप जो है वो पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको बंद कर दें. तो ये वो खुद से ऑब्लिगेशन उनकी हो, ना कि ये सिर्फ टीचर को दिखाने के लिए या टीचर ने कह दिया तो इसलिए वो कर दी. ग्रीटिंग कल्चर, वैल्यूज प्रोग्राम, आपके कोई जा रहा है, कोई बड़ा जा रहा है, कोई टीचर जा रहा है, उसको ग्रीट करना, यू नो, दे इट शुड बी they should feel कि ये उनकी moral obligation है कि उन्होंने ये सब कुछ करना है, not because कि ये कोई रिकॉर्ड के लिए उन्होंने वो करना है. तो ये सारी एक्टिविटीज ये टीचर्स का और ये CCA coordinators का और whoever is running those programs, they have to ensure this thing कि side by side इन programs के थ्रू उनकी civic awareness जो है उसके ऊपर भी काम होगा. For this session 2023, we have revised some books. The first book that we have revised is APSACS Co-Curricular and Enrichment Activities Forecast Booklet. Previously, ये forecast थी with dates, and then we realized, और फिर जो हमें field से भी feedback share हुआ था, they disclosed that it was difficult to continue the activities mentioned with the specific date. So हमने आपको ये freedom दे दी कि आप स्कूल अपनी convenience से, अगर वो busy है तो अगर उस डेट को नहीं तो अपनी convenience से किसी भी डेट पे वो activity perform कर सकता है. So this time we have changed the outlook of the book as well. Zain, if you please share the, so that I'm able to show the book. Thank you. So the name of the book has also been changed. Now it's APSACS Co-Curricular Activities and Holistic Development Program. Firstly, ये जो आपकी book थी इसमें सिर्फ खाली holistic activities का जिक्र था, और Makerspace और CCA जो activities थी वो एक different booklet में थी. But this time we have made this one book where you will find CCA activities and Makerspace program all in one book for your convenience, ताकि जो CCA coordinator है उसके लिए आसान हो कि ये सब चीजें किस तरह मैनेज करनी है और किस तरह इन सबको साथ लेके चलना है. This book is available on the website. और ये please, I hope since the session has already started कि you must have downloaded this book and you must have gone through the book, ताकि आपको जो भी कोई उसमें मसले मसाइल हैं, जो आपको चीज समझ नहीं आती, you are able to clarify those things. Because हम जो बुक भी रिवाइज करने का मकसद यही होता है कि it should be made as easy as possible for the implementation
क्योंकि implementation जो है वो basically आपने करनी है. So if you encounter any problem, we would like you should share it with us so that we can find a solution for that as well. तो हमारी कोशिश होती है कि जो field पे लोग होते हैं, the people who are implementing those programs, they should not face any problem or ambiguity in those. इसके साथ साथ we have also revised solid waste management and water preservation book. उसमें भी water preservation के लिहाज से, फिर zero waste warrior के लिहाज से, there's a lot of information that has been added in the book for your clarity, for your convenience. So please, I would request that all of you should download the book, and if it is possible, you can keep it in the hard form, so that whenever you want to consult it, it is easier for you to consult that. Then there was a suggestion from most of the regions to add a 0 period for CCAs. APSACS has given 0 period for allocation for all classes, 1 from HSSC, and we have shared the academic calendar also. In academic calendar, आपकी SSC and HSSC, different slots have been given for these CC activities, but for your convenience, आपको it is allowed कि अगर आपने SSC और HSSC के you want to combine the activities, you're most welcome to do that. ये स्कूल की अपनी discretion है कि वो अपना एक ही वक्त में SSC और HSSC को दोनों को combine करके अपनी CC activities जो है they can run this. Then inter-house and mega competitions have been reintroduced. They never actually finished. Schools were, as per their convenience, as per their resources, if they could manage infrastructure, unki formation unko permission deti hai, they were supposed to have those mega competitions. But हमने कभी मना नहीं किया था, but again COVID के ऊपर halt पे चला गया था, इसलिए वो schools की discretion आ गई थी. But they have been introduced from this session again. However, we got feedback that they should be explicitly mentioned in the academic calendar, and it has been done. हमने academic calendar में ये explicitly mention कर दिया है आपकी convenience के लिए. Then CCAs and house registers have been updated, and CCA clubs and makerspace program has been introduced. After the session, once I'm done with my side, Samreen will be discussing in detail how you have to maintain those registers. Then another change that is being done is CCA completion form that has been uploaded on AIS. I will be shortly telling you the details about that as well. I will be sharing the screen as well with you so that you know how you have to fill in that. Then basically CCA completion form जो है वो it will be helpful for us also. और जब आप भी use करेंगे, it is very user friendly. जब आप उसको go through करेंगे, आपको लगेगा कि ये बहुत आसानी से आप सारा का सारा data उसके अंदर save कर सकते हैं. और हमारे लिए भी it was convenient because हमसे जब हमारे higher authorities कोई data मांगते हैं तो जरूरी नहीं है कि we actually had to ask you कि भी वो detail दें, हमें फिर time लग जाता था और फिर evaluations के ऊपर depend होता था कि evaluations में जाएंगे तो वो data हमें मिलेगा. So now on this AIS form, it will be convenient for us as well कि whenever we want to have the data, we can have the data. The role of CC coordinator is very important, as this person has to coordinate with the senior management, the house in charges, club in charges, teachers and students. All the planning and execution stages have to be arranged and managed. इस सब काम के लिए we request the schools कि आप please nominal workload, academic workload should be given to the CCA coordinators. Not more than 14 to 16 periods because they have to maintain all the CCA records as well. And it's a tedious work which they have to undergo. So if you are going to engage them with all the 20 to 24 periods, they will not be able to maintain those records.
This time what we have done is जब हम schools में जाते थे तो आपका junior का, senior का, middle का, they all used to have separate CCA coordinators. From this session onwards, we have discontinued this practice. Now there will be only one CCA coordinator for the whole school, who will be maintaining the records for the junior, senior, and middle sections. If the school population, if the students are more than 2,500, then they can have assistant CCA coordinator. But otherwise, the previous practice of having separate CCA coordinators for junior, middle, and senior, it should be discontinued. और फिर वही बात है जब हम evaluation के लिए जाते थे तो same records, same चीजें, same pictures we used to find in all the 4 registers. और कुछ जो बड़े schools होते थे उन्होंने junior, senior, middle के अलावा अपना एक whole school का भी वो रखा होता था और फिर आप उनको accommodate करते हैं for the periods as well. आप 4 लोगों के periods अगर आप if you're going to bring down to 12 to 16 तो वो तो बाकी teachers पे भी burden पड़ जाएगा. So this is the reason this time we have introduced only one CCA coordinator for the whole school. If the school is big, 2,500 se zyada students are there, so then they can have assistant CCA coordinator to help them. But then you have to ensure that assistant CCA coordinator should also be having not more than 16 to 18 periods. As all the competitions and activities are to be conducted in houses, the house in charges must liaison with the CCA coordinator at every stage. And for complete guidelines, I would again suggest that you need to download this APSACS Holistic Development Program booklet to have a better understanding. The house system has been streamlined. For junior and middle school, every competition has to be conducted in their respective houses. जब आप respective houses में वो competitions करवाएंगे, तो the winner house will be given 1 point. और जो for mega competitions, जो कि आपके SSC और HSC level पे हैं, जो कि interregional हैं, inter-school हैं, उनके लिए अगर the school who's winning, उसको आप 5 points दें. उसके अलावा the house in charges are responsible for chairing the house meetings, conducting student council elections, conducting all activities in their houses, communicating house matters with principals and section heads. CCA clubs and makerspace clubs must be given emphasis. At least 5 CCA clubs and makerspace clubs have been introduced. अगर आप ये book में देखेंगे, we have given you around 10 to 12 CCA clubs and makerspace club. At least 5 clubs at a time run karne. If you have the capacity, if you have the resources, and if you think you can handle all those 10 clubs, so you're most welcome to do that. But I would suggest that 5 se kam mat ho, because in that way you will be restricting the students' choices. क्योंकि इतनी आपकी वैरायटी है आप choices देने की और ये clubs आपको suggest करने का मकसद भी ये है कि because every child is a different unique child, उसकी अपनी inclinations हो सकती है, उसकी अपनी likes dislikes हो सकती हैं, so the more variety you're going to give, बच्चे अपनी पसंद के मुताबिक they can choose the clubs. आपने prior permission भी लेनी है, वो parents consent form भी लगा हुआ है, वो सब आपके पास है, but again it's all in the booklet. You need to go through the book to implement that. इसी तरह आपके makerspace clubs जो हैं वो भी आपके 12 हैं. ये hands-on experience वाले clubs होते हैं कि जहाँ पे बच्चे जो हैं they are able to hands अपनी activity जो है अपने जो भी उनकी talent के मुताबिक है they can choose those clubs. Again, आप at least 5 clubs की options बच्चों को जरूर दें so that they can pick and choose as per their interests. CCA clubs and makerspace in charges must coordinate and inform the CCA coordinator of all the workings of their clubs. A separate register will be held by the CCA coordinator so each in charge can write the relevant information. It is just one register for all the clubs and not separate registers as the previous practice used to be. ठीक है, हमने compact कर दिए सारे की सारा ताकि आप लोगों के लिए भी इतने सारे registers maintain करना जो है वो मुश्किल था, तो हमने उसको concise कर दिए. Now I am going to discuss the CCA forms that have been uploaded on AIS.
Zain, please share the screen so that I can write in. Before that, I would like to share one point. एक क्यूरी भी अभी chat box में I was seeing, I was looking at that कि CCA coordinator का जो ID है वो AIS coordinator बना कर देगा, ठीक है? जब CCA coordinator अपनी ID से login करेगा तब उसको CCA form दिखेगा, ठीक है? थोड़ा वो visible नहीं होगा. Another thing is that a few people are asking whether the session is for preschool or the junior, middle, or senior section. This session is only for the CCA coordinator of junior, middle, and senior section. Preschool की activities we all know they are separate और उनका एक separate schedule share होता है. तो जो CCA coordinators हैं जिनसे हम अभी बात कर रहे हैं, they are for middle to senior level. और ये CCA coordinators जो हैं ये प्री स्कूल का डेटा मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि प्री स्कूल का रजिस्टर और उनका रिकॉर्ड सेपरेट होता है जो मोस्टली सेक्शन हेड या फिर टीचर्स मेंटेन करेंगे. So if anybody is attending this session from preschool, they can leave the session because आप लोगों के लिए ये सेशन नहीं है. This is APSACS के लोगों के लिए भी नहीं है. जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स फॉर इंटरनेशनल स्टडीज है उनके लिए भी सेशन नहीं है. ये नॉर्मल जो हमारी मेन स्ट्रीम चल रही है APSACS की, ये उनके लिए ये सेशन डेडिकेटेड है. सो प्लीज अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या प्री स्कूल से रिलेटेड है तो वो लोग यहाँ पे आज हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे. प्री स्कूल के लिए देयर इज अ सेपरेट टीम एट APSACS secretariat. Their activities are separate, so you can contact them if you have any confusion in that. Thank you. जी. Thank you. To access the CCA form, आप URL जो है वो apms.pk यूज करेंगे. जो AIS coordinator आपको अकाउंट प्रोवाइड करेंगे, आपने उससे लॉगिन करना है. पासवर्ड भी आपको वही देंगे and you ID and password. जी. Both. And then you can sign in. Sign. After signing in, this will be the view. You will be getting left side पे आप जब देखेंगे पैन में आपको navigation bar में CCA की टैब दिखेगी. When you will click that, you will see two more options: co-curricular activity form and all co-curricular activities. First of all, we will be moving to navigating to co-curricular activity form, which Madam will be explaining. Thank you, Zain. Once आपने CCA completion form के ऊपर click किया, तो this is the outface of that. You have to select the term. Once you select the term, two options: first term, second term. Please, मैं आपको ये clarify कर दूँ, since हमारे warm और cold regions, दो regions के साथ हमारे डील कर रहे होते हैं. कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो जो वार्म की हैं वो कोल्ड में या कोल्ड की वार्म में आ रही होती हैं. आपने एज पर वो देखना है कि फर्स्ट टर्म में अगर वो मेंशन है तो आप उसको फर्स्ट टर्म में ही, इवन इफ यू डूइंग इट इन द सेकंड टर्म, आपकी वो एक्टिविटी जो है वो फर्स्ट टर्म में आएगी. आप डेट वही डालेंगे जिस डेट को वो हुई है, लेकिन आप उसकी जो फिलिंग है दैट विल बी डन इन द फर्स्ट टर्म. Once you have selected the term, then you will select the activity type, whether it's internal or external. Now, internal are all those activities that have been suggested by APSACS secretariat, okay? Which is already mentioned in your academic calendar. When we will select internal, तो ये आपको filter कर देगा those activities which are suggested by APSACS secretariat, and when we will select the option of external activities, आपके पास फिल्टर होकर आ जाएगी जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज है. ठीक है, इसमें FVAC की होगी, वेक्टर की हो गई, आपकी ये सारी की सारी आई कैच हो गई, मैथ्स की हो गई. सो यू विल बी गेटिंग अ वैरायटी ऑफ, यू डू नॉट हैव टू टाइप एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन दैट. Another thing that I want to clarify is that basically your focus should be on internal activities that have been suggested by APSACS secretariat. We have given you exhaustive list of external activities. Agar aap dekhen to we have, I think, around 25 different competitions which we have suggested. It does not mean that you have to do all 25 of external activities. Ye wo सारी exhaustive lists we have prepared from the regions, जो कि they were already doing that. अब कुछ regions को कोई activity सूट करती है, different regions को, different schools को कोई और activity सूट करती है. So हमने आपको वो list दे दी है. आपका दिल करे 2 करते हैं, 3 करते हैं, that is up to you. आपका अगर ज़्यादा interest है या you have the time, you have the capacity to do as many as you like, but do not compromise these activities
at this for APSACS given or suggested activities. Make sure ye na ho ki aap your all focus should be on external programs or internal जो है वो you haven't done anything. External के ऊपर हमारा emphasis इसलिए भी नहीं होता कि basically most of the जो competitions are, they're all paid competitions. So it will be a burden on the students. So we just want to avoid that. We have suggested if the students want to participate in that, they can. Then we have activity in detail. आपने whatever activity you have done, for instance, आपने 76 Independence Day जो है वो celebrate किए. Was it a poster competition? Was it a Milli Nagma competition? Was it a morning assembly? You just need to give a brief detail about that. Then feedback, whatever you want to give feedback, that is optional, that is up to you. If you want to give it, it's okay. If you just leave it empty, even then this record will be saved. Then you need to select the date of the activity. Date of the activity will be the date on which that competition or that assembly or any activity was held, not the date that you filled in the data. अगर आपका 14 अगस्त का आपका फंक्शन है तो आपने जो डेटा एंट्री की है that was done on the 17th of August, तो आप 17th की डेट नहीं डालेंगे, आप 14th की डेट डालेंगे because that event was held on 14th of August. ठीक हो गया? Then number of students who participated, जितने students ने participate किया. अब उसमें अगर आप morning assembly की बात कर रहे हैं, maybe only 10 to 12 students participated in the assembly, but that assembly was about creating awareness about tree plantation or water conservation. तो आपके अगर देखें जितने लोगों ने वो अटेंड की, they are also civic awareness is created among all those students. So they also were part of this. Once you are going to write the number of students participated, तो आपने खाली वो 12 बच्चे जिन्होंने performance दी या जिन्होंने उसमें actual वो किया, आपने उसका नहीं, आपने impact overall school जो जिन्होंने वो attend किया, you are going to mention that number of students in this box. Then बहुत से जो competitions, especially जो APSACS के कैलेंडर में मेंशन किए हुए हैं उसमें पोजीशंस नहीं है. फॉर इंस्टेंस आप अवेयरनेस वॉक कर रहे हैं या ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं तो वो आपके उसमें पोजीशन होल्डर्स नहीं. बट इफ यू आर डूइंग डिबेट्स और इफ यू आर डूइंग क्विज कंपटीशन और बी कॉम्पिटिशन, स्पेलिंग बी कंपटीशन, तो उसमें देयर विल बी पोजीशन होल्डर्स. आल्सो देयर विल बी पोजीशन होल्डर्स फॉर द एक्सटर्नल इवेंट्स आल्सो. So इसमें आपने position holders will select the class, whichever class it was, 7th, 8th, 4, 5, then you're going to select the section. Section जब click करेंगे तो फिर automatically student name के लिए drop down में you'll get the whole class list. You will stick, just click on the name and that name will be there. Position जो भी उसकी आई, first, second, whatever, you will write over there. Now, if there are more than one student who has got the position, you see there's an option of add new row as well. You're going to click on that, and again you will select another class, another student. Multiple up entries भी कर सकते हैं. Then you need to go through all the details that you have filled in this form. That's most important. That is very important because आपका काम फिर tedious हो जाएगा if you are going to that. आपने जब एक दफा double ensure कर लिया कि whatever entry you've done, you're satisfied with that and that is correct and accurate, then you need to save the data. Yeah, before clicking the save button, you have to double check the things, because if any entry is done wrongly, you have to delete that and then you have to re-enter it. There's no option of editing. Okay? So this is most important. ये आप प्लीज इंश्योर कर लें क्योंकि आप ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ एक चीज को वो करें. Edit option इसमें नहीं है. You have to re-enter the whole data if there is any mistake. अब आप once you're going to click on all curricular activities, once you're going to click on that, so whatever activities जो आपने previously you have saved in that, all those activities will be appearing in front of you.
ये आपकी समरी आ गई जो आपने पूरी जहां जब भी कहीं आपने ये वो की है। और इससे सबसे आखिर में आप अगर देखें तो यू कैन सी द डिलीट बटन काइंडली। This is the entry which we have recently added. They ठीक है। created on 31st August. जी। There is option to delete the activity. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाटा आपने एंटर किया है it is displayed over here. And the number of participants 150, activity detail was the poster competition, activity date, everything is over here. Okay, you can simply delete it if you have entered any wrong data, and then you will be able to re-enter it. लेकिन फिर आप जब वापस अपनी सीसीए के ऊपर एंट्री के ऊपर जाएंगे तो आपको ईच एंड एवरी डिटेल यू हैव टू डू इट अगेन For that particular हाँ। student. जी। Event. इवेंट पूरा वो तो पूरा डाटा है पूरा आपका। data है आपका। That is all from my side. Now over to Samreen for all the registers, makerspace and CCA registers. Thank you so much, Humaira, for explaining the part in a very comprehensive way. Before moving on to registers, I'll like to discuss a few things. Registers जो इस दफा हमने उसके templates थोड़े update किए हैं, उनको थोड़ा सा और brief and comprehensive भी किया है. Just to ensure कि आपके एक तो multiple registers को avoid करने के लिए मैम हुमैरा ने आपको 2 से 3 दफा सेशन में बताया भी है कि आपके एक ही CCA कोऑर्डिनेटर है पूरे स्कूल का if the strength is up to 2500 students. अगर 2500 से exceed कर रही है then you can have an assistant CCA coordinator and same rule goes for the house in charges. हर हाउस के लिए सिर्फ एक हाउस इंचार्ज होगा. अगर स्ट्रेंथ एक्सीड करती है 2500 से तो फिर आप एक असिस्टेंट हाउस इंचार्ज भी अपॉइंट कर सकते हैं. Then we have another register that we have introduced for this academic year, that is CCA clubs and makerspace program register. So यहाँ पे जो emphasis मेरा है वो ये है कि आप लोग प्लीज स्मार्ट वर्क पे फोकस करें. हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करें. जो भी आप डेटा मेंटेन कर रहे हैं उसको स्मार्टली आप करें, बजाय इसके कि आप पेजेस पे पेजेस भरते जा रहे हैं. आप अभी देखेंगे भी तो हमने बहुत पर्टिनेंट डिटेल्स उसके अंदर मांगी हुई हैं कि आपको भी उससे फौरन समझ आ जाएगा. एंड सेम गोज फॉर द एवेल्युएशन टीम. यहाँ पे जो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज का मिस हुमैरा ने बताया है उसमें यह है कि जब एवेल्युएशन टीम भी जाएगी तो आपकी एवेल्युएशन इंटरनल एक्टिविटीज पे होगी. एक्सटर्नल प्रोग्राम्स को हम उतनी वेटेज इसलिए नहीं देते कि वो सेक्रेटेरिएट की तरफ से एज अ डिस्क्रिशनरी रिसोर्स शेयर की जाती हैं, डिस्क्रिशनरी इवेंट शेयर की जाती हैं. दोज एक्टिविटीज आर नॉट मैंडेटरी. लेकिन जो सेक्रेटेरिएट ने शेयर की हुई हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपके लिए करना मैंडेटरी है. हर प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, उसमें स्कूल्स अपनी मर्जी से एक्टिविटीज ऐड भी कर सकते हैं. जो सेक्रेटेरिएट ने लिस्ट दी हुई है वो भी आप कर सकते हैं. लेकिन आपको लगता है कि आपके पास कुछ इससे बेहतर एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं आप, या आपके स्टूडेंट्स को इससे बेहतर कोई चीज सूट करती है तो आप अपनी मर्जी से उसी के अंदर उससे रेलेवेंट एक्टिविटी डाल भी सकते हैं. इट्स अप टू यू. एक और बात कि इस दफा आप लोगों को पता होगा सीनियर क्लासेस के लिए फेडरल बोर्ड ने अपने एग्जाम स्केड्यूल जो है वो थोड़ा रिवाइज किया है. 2024 में जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे वो मैट्रिक के लिए इट्स इन मार्च 2024 एंड फॉर HSSC दे विल बी हेल्ड इन अप्रैल. तो थोड़ा टाइम जो है वो श्रिंक हो गया हमारे सेशन का. इस वजह से अभी एक लेटर भी आप लोगों को रिसीव हुआ होगा असेसमेंट एंड एग्जाम की तरफ से. आई होप आप लोगों को उसमें CCA का पार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसमें लिखा हुआ है कि फॉर दिस ईयर जो मेगा इवेंट्स हैं आपके वो सेकंड टर्म में दे आर नॉट मैंडेटरी. सो मैंडेटरी का मतलब ये है कि ऑब्वियसली एकेडमिक्स अगर आपके सफर होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि मेगा इवेंट्स में बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, उनको प्रेपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, उन्हें क्लासरूम से थोड़ा बाहर भी रहना पड़ता है. तो हमने इस दफा उनको मैंडेटरी नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह वो उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी. बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके एकेडमिक्स मैनेज हो रहे हैं और आपके पास कोई ऐसी विंडो निकलती है कि आप बच्चों को कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं या आप मैनेज कर सकते हैं तो प्लीज जरूर करवाइए. बिकॉज होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को हम बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं. दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट. एकेडमिक्स और को-करिकुलर एक्टिविटीज की इक्वल वेटेज है. तो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिविक अवेयरनेस का अगेन आई वुड लाइक टू रीइंफोर्स कि आपका जो सिविक जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे सिविक अवेयरनेस के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं.
तो जो भी आप अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं वो सारे के सारे सिविक अवेयरनेस, क्योंकि अब हमें हायर अथॉरिटीज की तरफ से भी टाइम टू टाइम डेटा रिक्वायर्ड होता है कि बच्चों में एक एपसेक्स के स्कूल्स में, एपीएसएस में आप बच्चों में सिविक अवेयरनेस किस तरह से इनकलकेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स को जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में सिविक अवेयरनेस जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने इस मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है ना वो इंश्योर करवानी है कि हमारा फोकस जो है वो इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि आपने 50 एक्टिविटीज करवा दी हैं। आप बेशक 5 एक्टिविटीज करवाएं, लेकिन उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाएं बच्चों। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि वही 4 फेसेस आप हर दफा रिपीट करते जा रहे हैं और बाकी स्कूल के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल लेफ्ट ओवर हैं या उनके ऊपर कोई फोकस नहीं। तो the focus should not be on the numbers. It should be all activities must be done with maximum number of students. बेशक आप ग्रुपिंग कर लें कि एक एक्टिविटी आपने 15 बच्चों के साथ करवा ली, दूसरी 50 के साथ करवा ली, तीसरी आपने और एक ग्रुप के साथ करवा ली, लेकिन मैसेज जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए। So now I will proceed to the registers that we have developed for this year. Zain, can you please start with the CCA coordinators register? So this is the register for co-curricular and enrichment activities record register. This register will be kept with the CCA coordinator. This is the first page. You have to enter the session, the running academic year. Then you have to write the region and the core. Region में आप warm लिखें, core में आप उसके साथ please ये भी mention करें कि 11 core है, 10 core है, whatever. So you have to write the name of the school. School level का मतलब है कि school किस level तक है, if it's starting from preschool till second year तो वो लिखें name of the principal and names of all section heads starting from junior, middle and senior. Then name of the CCA coordinator, and if you have appointed an assistant CCA coordinator as per the policy, then you have to write the name over here. Moving on to the organogram. Principals and the section heads have the supervisory role. Then comes the CCA coordinator, and under CCA coordinator comes the house in charges, makerspace program in charges, CCA clubs in charges, and student council also plays a very important role in conduction of all the activities. इस दफा हमने रजिस्टर्स में कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस ऐड कर दी हैं. फॉर द डिटेल इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू रेफर टू द पॉलिसी हैंडबुक दैट वी हैव ऑलरेडी शोन during the session. Please refer to the updated CCA handbook that has been developed for academic session 2023-24. So as I've already discussed, that guide and encourage maximum students to participate in CCAs, ensure CCA record keeping is done correctly, realistically, regularly in co-curricular enrichment activities. Record register and give an overview of the entire activity, internal, external CCAs, values education, competitions, etc. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो साथ के साथ रिकॉर्ड अगर मेंटेन करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि जिस दिन इवेंट हुआ है आप देखेंगे कि इतना टीडियस किस्म का रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं है, आपको जस्ट ब्रीफली उसमें लिखते जाना है, ठीक है. और करेक्ट डेटा एंटर करें, रियलिस्टिक डेटा एंटर करें. हमें भी पता चल जाता है जब हम इवैल्यूएशन पे जाते हैं कि वो रिकॉर्ड साथ साथ फिल हुआ हुआ है या वो 1 वीक पहले या जैसी इवैल्यूएशन की डेट अनाउंस हुई है उस वक्त हुआ हुआ है, तो उसको अवॉइड करें. Record of special achievements, medals, distinctions should be indicated clearly with students' detail. उसका फायदा ये कि किसी वक्त अगर सेक्रेटेरिएट आपसे डेटा मांगता है कि हमें कोई एक्सटर्नल कंपटीशन है या किसी भी उसके डिटेल्स हमें चाहिए कि बच्चों ने कोई मेडल्स विन किए थे, कोई अचीवमेंट्स हैं या हाई अचीवर्स हैं सीसीएज में, तो वो डिटेल्स आपके पास पड़ी हुई हों तो आप फौरन से शॉर्ट नोटिस पे भी हमें प्रोवाइड कर सकें. Any further information may be written in any further information comment section. That if you have faced any difficulty during conduction of a certain CCA या आपकी कोई suggestion है इसको improve करने की, you can write in any further information and comment section. Maximum 2 to 3 relevant photographs of the event should be pasted in given section. आपकी जो pictures हैं आप obviously जो भी event कराते हैं multiple photographs ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपने पेस्ट करनी है वो ओनली 2 to 3 रेलेवेंट फोटोग्राफ्स पेस्ट करनी है रिलेटेड टू एवरी एक्टिविटी. वी डू नॉट नीड बंडल ऑफ पिक्चर्स. हम नहीं चाहते कि आप बार बार प्रिंटिंग करें और पेपर भी वेस्ट करें, उसमें आपकी बाकी रिसोर्सेज भी जो हैं वो वेस्ट होते हैं. तो ओनली पर्टिनेंट पिक्चर्स आर रिक्वायर्ड. आप सॉफ्ट कॉपी अपने
सीसीए कोऑर्डिनेटर जो है अपने पास अपने सिस्टम में अपने लैपटॉप में मेंटेन रखें, और इन केस अगर एवेल्युएशन टीम भी आती है तो आप उनको सॉफ्ट में दिखा सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेड। सेकेंडली, सेक्रेटेरिएट की जो वेबसाइट आपका ईमेल एड्रेस है gallery@apsacsec.edu.pk कंप्यूटर रिसोर्स एंड ग्राफिक्स डिपार्टमेंट है सेक्रेटेरिएट में, आप उनको टाइम टू टाइम ईमेल करते रहें। हर इवेंट के बाद हम वहां से पिक्चर्स जब भी हमें चाहिए होती हैं तो हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट से ले लेते हैं प्रमोशंस के लिए, या किसी रिपोर्ट में हमें अगर लगानी होती है या व्हाटएवर। यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन भी मैं आपको दूंगी कि जब आप पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं ये gallery@apsacsec.edu.pk पे, तो पिक्चर्स के कोलाज आप बनाते हैं, ठीक है, कोलाज बना लें, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप पूरा का पूरा ना स्कूल का नाम वाटर मार्क की फॉर्म में लिख देते हैं। तो उसकी वजह से किसी वक्त हमें कोई पिक्चर क्रॉप करके चाहिए या हमें इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है तो वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉसिबल होती है। बैकग्राउंड में हमें नजर आ रहा होता है कि पिक्चर बहुत अच्छी है, बड़ी पर्टिनेंट है और बहुत रेलेवेंट है, लेकिन वो हमारे लिए यूजलेस हो जाती है। तो आप फोल्डर मेंटेन करके वी ट्रांसफर के थ्रू उसको कंप्रेस करके वी ट्रांसफर लिंक के थ्रू आप वो पिक्चर बेशक भेजें, पिक्चर्स भेजें, लेकिन वो ये है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव से भी देख लें कि अगर सेक्रेटेरिएट में हमें उन पिक्चर्स को यूज करना पड़े कहीं वेबसाइट पे लगाने के लिए, किसी बुक में लगाने के लिए, किसी रिपोर्ट में लगाने के लिए, तो हम उसको यूज भी कर सकते। आई होप आई एम क्लियर। देन मूविंग ऑन टू द पैरेलल पेज, इसमें आपके सीसीए कोर कमेटी मेंबर्स आ जाते हैं। जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं आपके इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके नेम, डेजिग्नेशन, असाइंड रोल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देन आपका आ जाएगा यहाँ पे, आप एक जो मीटिंग करेंगे सीसीए कोऑर्डिनेटर जो हैं अपनी कमेटी के साथ, कमेटी मेंबर्स हैं आप, इसमें स्टूडेंट काउंसिल भी आ जाएगी, इनके साथ जो मीटिंग करेंगे तो जो आपने एक्टिविटीज, एक तो हमने अपने ऑब्वियसली कैलेंडर में, एकेडमिक कैलेंडर में दी हुई है, आपने अपनी प्लानिंग भी कर लेनी है कि अगर तो आपको सारी डेट सूट कर रही है तो आप वही प्लानिंग यहाँ पे लिख लेंगे। ये एक तरह से एक समरी है कि आपने किस डेट पे कौन सी एक्टिविटी प्लान करनी है, और आगे आप रिमार्क्स में लिख देंगे कि कोई भी आपको उसके लिए कुछ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं या कोई फर्दर उस पर कोई भी आपका अपनी उसके रेफरेंस के लिए आप कुछ भी लिखना चाहते हैं उसमें कमेंट, तो आप लिख सकते हैं। तो ये आप बेशक टर्म के स्टार्ट में मीटिंग करें और उसमें आप सारी अपनी प्लानिंग कर लें, ठीक है। तो वो प्लान्स चेंज भी हो जाते हैं अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो कोई बात नहीं, वो उसकी प्लानिंग दोबारा से भी उस एक्टिविटी की भी हो सकती है, किसी ऐसी डेट पे फॉल कर गई है कि जहाँ स्कूल क्लोजर हो गया है, खुदा ना खास्ता कोई और, कोई अल्लाह ना करे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया जिसकी वजह से इस तरह हो गया, तो आप फिर उसकी प्लानिंग कहीं आगे पीछे शिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये जो आपका रिकॉर्ड है दैट इज फॉर द एक्टिविटीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो कि हमने कैलेंडर में मेंशन की हुई है। ऊपर आप टर्म लिखेंगे, देन लेवल लिखेंगे कि किस लेवल का रिकॉर्ड ये आप मेंटेन कर रहे हैं, कि आपने अगर जूनियर लेवल में करवाई है तो आप जूनियर ऊपर लिखते हैं, अगर जूनियर मिडिल दोनों की करवाई है जूनियर मिडिल लिखते हैं, अगर तीनों ही सेम डेट पे एक साथ एक्टिविटीज कराई है तो फिर आप तीनों का लिखते हैं, जूनियर मिडिल सीनियर। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे एंड डेट ऑफ द एक्टिविटी लिखेंगे। ये वो डेट आपने नहीं लिखनी कि जब आपने डाटा एंटर किया है कि आपने किस डेट को एक्टिविटी करवाई थी, को-करिकुलर एनरिचमेंट एक्टिविटी इंटरनल और या एक्सटर्नल, ठीक है। एक आप साथ मेंशन कर दें कि इंटरनल एक्टिविटी है, इसमें क्लास सेक्शन कौन सी क्लासेस इसमें पार्टिसिपेट करी थी, 4A ने पार्टिसिपेट किया है तो आप उसका डाटा लिखिए, नीचे एक ही एक्टिविटी के अगेंस्ट आ जाएगा। देन आपकी नेक्स्ट क्लास उसमें जो थी वो सेक्शन वाइज, बेशक एक ही सेक्शन में 4 के सेक्शंस मेंशन कर दें, 4A 4B 4C 4D, फिर नेक्स्ट में अगर क्लास 5 है तो उसके वो सेक्शंस मेंशन कर दें, फिर 6 के जितने बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व थे, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्लास 4 के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अगर आपको इसको सिर्फ क्लास वाइज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये अब आपकी अपनी स्मार्ट मेंटेनेंस है कि आप किस तरीके से इसको लेके चलेंगे, नहीं ऊपर करें इसको, ठीक है। देन यू हैव टू एंटर द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स and detail of the activity if there is any achievement, if there is any distinction, जैसे external competitions हैं कि आपने कैंगरू मैथमेटिक्स कराया है या फेडरल बोर्ड का कोई कंपटीशन था और आपके बच्चे की उसमें पोजीशन आई है तो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर दें, उसकी डिटेल्स आप मेंशन कर दें, या एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वांट टू राइट। Then any further comment section, as I have already told, if there is any suggestion, if there is any difficulty that you have faced during conduction of the activity, you can write it here. Then signature of the section head and date. यहाँ शुरू में instructions पे ले जाएं ज़ही।
यहाँ पे एक मैंने मिस कर दिया इसके अंदर, दैट रिकॉर्ड ऑफ ईच एक्टिविटी मस्ट बी साइंड बाय द रेलेवेंट सेक्शन हेड। जो भी एक्टिविटी आप करवाएंगे उसके एंड पे सेक्शन हेड के हर एक्टिविटी के बाद इस रजिस्टर पे साइन होने चाहिए। एंड प्रिंसिपल टू साइन द रिकॉर्ड रजिस्टर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और प्रिंसिपल्स के लिए मैंडेटरी है कि वो हर जब एक मंथ मतलब अगस्त स्टार्ट हुआ है तो अगस्त के एंड पे वो उस महीने में जितनी भी एक्टिविटीज करवाई हम उसको साइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने दिया भी है सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल विद डेट। तो डेट से हमें भी पता चलेगा कि आपने रेगुलरली इसको साइन किया हुआ या नहीं किया हुआ। सो ये दो पैरेलल पेजेस जो है फोटोग्राफ्स के लिए दिए हुए हैं। अगर ऊपर आपने 2 एक्टिविटीज करवाई हैं तो 2 to 3 रेलिवेंट फोटोग्राफ्स आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, उससे ज्यादा मत पेस्ट करें, वी डू नॉट नीड इट, रेस्ट टू बी केप्ट इन द सॉफ्ट फॉर्म। Now moving on to the CCA clubs and makerspace program record register that we have introduced for this year. इससे पहले ये register नहीं था, this is a new register for all of you. इसके लिए आपके CCA clubs and makerspace program in charge हैं जो इसको maintain करेंगे। Session, similarly you have to write the session, region and co. Then you have to write the school name, school level, name of the principal, and all 3 section heads and name of the CCA coordinator. So instructions are that you have to ensure the maximum participation of the students. Same, you have to write enter the correct and realistic data. Register will be kept with the CCA coordinator and filled by club in charges after each activity. That is very important. आपको पता है CCA clubs हैं, for example dramatics club है, young journalist club है, इसी तरह के आपके linguistic club है, उसके हर club का एक club in charge होगा। तो उस वो क्लब इंचार्ज जो भी एक्टिविटी कराएगा और उसका जो भी डेटा होगा वो इसी रजिस्टर में सीसीए इंचार्ज सीसीए कोऑर्डिनेटर के पास आके अपने अपने क्लब से रिलेटेड डेटा इसके अंदर फिल करते जाएंगे आफ्टर ईच एक्टिविटी। सो द रजिस्टर विल बी विद द सीसीए कोऑर्डिनेटर। तो हर क्लब इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सीसीए कोऑर्डिनेटर ने इंश्योर करवाना है कि क्लब इंचार्जेस रेगुलरली इसमें आके जब भी क्लब एक्टिविटीज हो रही है वो डेटा इसके अंदर आके फिल कर रहे हैं। Record of each meeting activity must be signed by the CCA coordinator at end of every month. Principal and section heads to sign the register at the end of each term. So इसमें principals और section head जो है वो end पे sign करेंगे हर term के end पे, लेकिन CCA coordinator जो है वो every month इस register को sign करेगा। Maximum 2 to 3 relevant photographs. Instructions are the same for this register as well. ठीक है, और soft copy should be kept with the CCA coordinator in her computer laptop. And rest of the pictures to be emailed to APSACS Department of Computer Resource and Research, Graphics, sorry. Here comes the CCA clubs and makerspace program members. You have to write down the names. जो भी आपके committee members हैं, जिन लोगों को यहाँ पे आपका CCA coordinator तो obviously हैं, then आपके सारे club in charges के नाम आ जाएंगे। देन उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनको आपने क्या रोल असाइन किया है, उसमें उनके रोल असाइन में उनके क्लब्स आ जाएंगे कि वो इस क्लब के इंचार्ज हैं। आपकी स्टूडेंट काउंसिल है, अगर क्लब्स में आपके प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज होते हैं आप उनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। देन फर्दर आपके हाउस जो कैप्टन्स होते हैं वो भी अगर आप उनको इन्वॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाए। देन CCA क्लब एंड मेकरस्पेस प्रोग्राम, यहाँ पे आप जो है मीटिंग कर रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं या एट द स्टार्ट ऑफ ईच टर्म आप मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी समरी आ जाएगी मीटिंग की कि किस डेट पे आपने यहाँ वो डेट लिखनी है जिसपे आपने एक्टिविटी प्लान की है। सो नेम ऑफ द यू हैव टू राइट द डेट, देन नेम ऑफ द प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफ देयर आर एनी रिमार्क्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस रजिस्टर। Here comes the proper record keeping template. यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इस रजिस्टर के 2 पार्ट्स हैं। ये पार्ट जो है वो CCA क्लब्स के लिए है और इसके बाद इसका हाफ पार्ट जो है वो मेकर स्पेस क्लब्स के लिए है। तो फर्स्ट जो पार्ट अभी मैं आपको बता रही हूँ दैट इज फॉर CCA क्लब्स, और नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी उसमें सिर्फ एक चेंज है कि CCA क्लब्स की जगह यहाँ मेकर स्पेस क्लब्स आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ जी, ज़हीम आप आगे करें तो इनको दिखा भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये मेकर स्पेस प्रोग्राम्स है, तो आपने रजिस्टर को हाफ जो है वो उसके अंदर है, ये तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसमें हमसे मेकर स्पेस का प्रोग्राम मेकर स्पेस प्रोग्राम्स का डाटा हम कहाँ एंटर करेंगे, या आप CCA क्लब्स के अंडर ही वो मत डालिएगा प्लीज। तो एक टेम्पलेट मैंने यहाँ पे एक एज अ सैंपल मैंने इस टेम्पलेट को फिल किया है दैट फॉर एग्जांपल ऑन 14 आपने ड्रामेटिक्स क्लब की एक एक्टिविटी करवाई है। ठीक है, उसमें आपके ये क्लासेस इन्वॉल्व हैं
हर क्लास के अगेंस्ट मैंने नंबर लिख दिए कि ये क्लास 7 से हो सकता है 6 बच्चों ने इस क्लब को ज्वाइन किया हुआ हो, 8 से 8 ने इसी तरह नीचे दिया हुआ है। तो आपने डिटेल ऑफ द एक्टिविटी में बता दिया कि स्टूडेंट्स लर्न टू राइट स्क्रिप्ट एंड रोल प्लेस एंड डिड रिहर्सल्स फॉर द इंटर हाउस कॉम्पिटिशन। तो वो उसके नीचे यही आ जाएगी उसमें नेक्स्ट कॉलम में भी, बिकॉज सेम एक्टिविटी हैज बीन डन बाय ऑल द स्टूडेंट्स हु वर इन्वॉल्वड इन द क्लब। तो आप इसको इसी तरीके से आप लिखते हैं। सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। तो आप देख रहे होंगे सिंपल है, कोई इसमें आपने बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव किस्म का आपका काम नहीं है इसके अंदर। तो आपकी स्मार्ट मैनेजमेंट जो है और मेटिकुलस डेटा मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। नीचे आ जाए जाइए। एनी फर्दर इंफॉर्मेशन एंड कमेंट्स, सेम आपकी कोई भी सजेशन है, कोई डिफिकल्टी है, सिग्नेचर ऑफ द सीसीए कोऑर्डिनेटर एंड डेट। तो ये वही पेज रिपीट हो रहा है। देन कम्स द फोटोग्राफ्स, रेलेवेंट फोटोग्राफ्स आप यहाँ लगा देंगे। एंड दिस रिकॉर्ड इज फॉर मेकर स्पेस प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आप मेकर स्पेस क्लब्स लिख देंगे और रेस्ट ऑफ द डेटा टेम्पलेट इज द सेम, and same goes for the photographs. Now we are moving towards the house registers. जैसे ये आपको पता है सारे 4 हाउसेज हैं और उनके डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट कलर्स हैं। इनका टेम्पलेट अंदर जो है वो सारे हाउसेज के रजिस्टर्स का सेम है, ओनली द नेम ऑफ द हाउस एंड द कलर इज डिफरेंट। So you'll start with the session, region code, name of the school, school level, principal, all section heads, then the CCA coordinator, name of the house and house in charge. So instructions are core committee members जो हैं इसके house in charge हैं, आपके assistant house in charge if applicable, then आपका head boy, head girl इसमें applicable if applicable आपकी school में अगर है तो sorry, then house captains आपके आ जाएंगे। House in charge to chair the house meeting, one in each term and fill the record in the relevant section. तो house in charge की responsibility है कि वो house meeting हर term में एक start में कर लें और जो भी आपकी planning है उसके अंदर आप लिखिए। The register will be filled by the house in charge after each activity. CCA coordinator will sign the house register after each activity. CCA coordinator हर activity के बाद इनको sign करेंगे। House point scores will be updated each event in the inter-house competition result section. अच्छा, इसकी पॉलिसी ये है कि इस दफा हमने ये कहा है कि आपके जो हाउसेज हैं इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हमने एक तो रीइंट्रोड्यूस कराए हैं, देन हमने मेगा कॉम्पिटिशन्स रीइंट्रोड्यूस कराए हैं जो कि कोविड की वजह से हॉल्ट पे चले गए थे, तो इस साल हमने उनको रिवाइव किया है। सो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन अगर कोई हाउस विन करता है, फॉर एग्जांपल डिसिप्लिन ने अगर इंटर हाउस कॉम्पिटिशन विन कर लिया है तो आप उसको, आगे मैं दिखाती हूँ आपको टेम्पलेट भी, उसको 1 मार्क मिलेगा उस हाउस को। और अगर उस हाउस के बच्चों ने मेगा कंपटीशन विन किया है, कोई सीनियर स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल होगा ये, तो उस हाउस को 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इन केस ऑफ इंटर हाउस कंपटीशन, इफ द हाउस हैज won the competition, 1 mark will be allocated, and if that house has won a mega event, mega competition, that is inter school competition within the region, then 5 marks will be allocated to go to that house, and by the end of the session आपका हाउस ऑफ द ईयर जो है वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, आपकी जो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हैं वो आपकी क्लास 4 to 8 के लिए हैं, ठीक है, और जो आपके मेगा इवेंट्स हैं वो क्लास आपका 9 to 2nd ईयर के लिए हैं। तो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो आपके क्लास 4 to 8 के लिए जो हैं उसमें आपके इंटर हाउस नात एंड किरात कंपटीशन है, इंटर हाउस ड्रामेटिक्स है, इंटर हाउस डिबेट्स कंपटीशन है, इसके अलावा इंटर हाउस आपका स्पेलिंग कंपटीशन, स्पेलाथॉन, इस टाइप की चीजें भी हैं उसके अंदर। मेगा इवेंट्स भी इसी तरह है, मेगा नात एंड किरात कंपटीशन, मेगा ड्रामेटिक्स कंपटीशन, मेगा डिबेट्स कंपटीशन, ये इस तरह से आते हैं। उसके लिए आपके पास ये डिटेल में हमने पॉलिसी हैंडबुक में भी सारे के सारे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो आपने इंटर हाउस कंपटीशन सिर्फ 8th क्लास तक करवाने हैं और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए मेगा इवेंट्स है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया इस साल आपके मेगा इवेंट्स जो हैं वो सीनियर क्लासेस के लिए मैंडेटरी नहीं है। So here we'll write the name of the core committee members, names, their designation and assigned role. Then same आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें प्लान्ड एक्टिविटी है, उसके रिमार्क्स, यहाँ पे आपकी मीटिंग जो करेंगे उसका डेटा एंटर करेंगे, प्लानिंग आपकी यहाँ पे होगी। देन कम्स ये आपको जो मैं स्कोर वाला बता रही थी, ठीक है, सीरियल नंबर, देन आपका डेट है जिस डेट पे वो कंपटीशन हुआ है। अगर इफ इट इज इंटर हाउस कंपटीशन तो ब्रैकेट में लिख दें इंटर हाउस कंपटीशन, क्योंकि
और साथ क्लास मेंशन कर दें और उस क्लास के कौन सी क्लास के बच्चे थे और उसमें आप पॉइंट्स और स्कोर आपका इंटर हाउस अगर विन किया डिसिप्लिन ने तो 1 मार्क आप यहाँ पे दे देंगे, अगर मेगा था तो आप 5 मार्क्स दे देंगे। यहाँ पे टोटल हो जाएगा एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर और फिर सारे हाउसेस का रिजल्ट जब कंपाइल होगा तो जिस हाउस के मार्क्स हाईएस्ट होंगे दैट विल बी द हाउस ऑफ द ईयर। सिग्नेचर ऑफ द सीसीए कोऑर्डिनेटर एंड ये आप इसी तरह से आ गया। अच्छा, यहाँ पे आपने हाउस कॉम्पिटिशन्स का डेटा एंटर करना है। आपका टर्म आ गया, लेवल आ गया, देन डेट, हाउस कंपटीशन का नाम आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, उसमें कितने बच्चे इन्वॉल्व थे, कौन सी क्लासेस थी, उनका सेक्शन, नेम ऑफ द विनर्स इफ एनी। अगर आपका ये हाउस ने कंपटीशन विन किया तो यहाँ विनर्स के नाम आ जाएंगे और डिस्टिंक्शंस इन मेगा इवेंट्स, अगर मेगा इवेंट्स में आपके हाउस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था जी तो आपके यहाँ पे ये आ जाएंगे डिस्टिंक्शंस इन मेगा इवेंट्स। अगर आपके उस हाउस के बच्चों की कोई डिस्टिंक्शन है और उन्होंने मेगा इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और दे हैव वॉन द कंपटीशन, देन यू हैव टू राइट द डिटेल्स हियर, then see signatures of the CC coordinators and date. So this is all from my side. Now we are all here for the queries, to take the queries. If you have any question, please feel free to ask any query. लेकिन मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि yesterday and हमने बहुत ज्यादा इस चीज को फेस किया है कि सिमिलर क्वेरीज कोई 6 से 7 लोगों ने पूछी है। तो इट डजंट मीन कि अगर किसी स्कूल से एक सीसीए कोऑर्डिनेटर ने क्वेरी पूछी है तो बाकी लोग जो हैं वो उसको सुने नहीं कि ये तो उनकी क्वेरी है। हो सकता है आपकी क्वेरी उस क्वेरी में आंसर हो चुकी हो, तो प्लीज रिपीटेड और सिमिलर क्वेरीज अवॉइड करें ताकि मैक्सिमम लोगों को मौका मिल सके पूछने का और इससे आप लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि जितनी ज्यादा डिफरेंट क्वेरीज डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होंगी उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो before we will we move to face-to-face queries like interactive queries. We have some queries in the chat box. Here we are, ma'am. I want to ask that house captain and head boy will also be one in one school, means middle and senior wing. One room. हेड बॉय तो एक ही होता है, ठीक है। हेड बॉय का इस दफा हमने जो पॉलिसी जो थोड़ी सी क्लैरिटी से मैं आपको बता देती हूँ कि हेड बॉयज जो हैं वो सीनियर मोस्ट क्लास से हैं। अगर आपका स्कूल सेकेंड ईयर तक है तो हेड बॉय हेड गर्ल आपका सेकेंड ईयर से होगा। अगर आपका स्कूल मैट्रिक तक है तो क्लास 10 से होगा। अगर आपका स्कूल क्लास 8 तक है तो 8 से होगा। जूनियर जो सेक्शन है, जूनियर स्कूल जो है वो इसमें से एग्जाम्प्ट है क्योंकि जूनियर, अगर आपका स्कूल जूनियर लेवल तक है, क्लास 3 तक है, तो उसमें ऑब्वियसली हेड बॉय हेड गर्ल नहीं होगा क्योंकि वो थोड़े ज्यादा रिस्पॉन्सिबल किस्म का रोल होता है तो उसके लिए बच्चे बहुत छोटे होते हैं। एक तो ये आपका आ गया। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, हाउस कैप्टन। तो हाउस कैप्टन भी आपके हर सेक्शन में होते हैं, जूनियर में भी होते हैं, मिडिल में भी होते हैं और आपके सीनियर में भी होते हैं। तो सेक्शन वाइज हाउस कैप्टन होंगे, हर हाउस का एक हाउस कैप्टन होगा क्लासरूम से। There is a query from Miss Sumera. Here is ICRA APS quota. I am using CCA form to upload activity details. I have a suggestion. If we can upload pictures of the mentioned activities on the same page, record keeping with evidences will be more easy. Is it possible? So, Sumera, are you talking about the AIS page? Yes. We will look into feasibility. So, देखेंगे अगर it's possible तो जी सुमेरा, हम इसको देख लेंगे। दैट इज अ वेरी नाइस सजेशन, बट इशू ये होता है कि जब मल्टीपल पिक्चर्स अपलोड होती हैं तो एआईएस की भी थोड़ा सा ये कि उसकी हमने देखना होता है कि वो कितना उसको टेक अप कर सकता है क्योंकि पिक्चर्स हैवी होती हैं। सो ऑलरेडी उसके लिए सजेस्ट किया है जी वाटर मैनेजमेंट के लिए। we'll look into it. That's a nice, मैम प्लीज नोट डाउन कर लें इसको। मैम हाउ pictorial evidence here where on AIS? On AIS we haven't asked for the pictorial evidences yet. As for now अभी नहीं है इसके ऊपर ये अवेलेबल, ठीक है। इन फ्यूचर हम देख लेंगे इसकी फिजिबिलिटी को, तो हम इसको देखेंगे जो वाटर मैनेजमेंट का। What about the feedback column? Which way have you have? फीडबैक के लिए आपको बताया था कि ये ऑप्शनल है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। अगर AIS की बात कर रहे हैं तो फीडबैक इज ऑप्शनल। आप if you do not want to write anything in that, it's okay, even then the record will If be you saved. want to ask about the clarity के feedback क्या है, तो feedback में आप बता सकते हैं कि आपने एक्टिविटी जब कंडक्ट करवाई है, if you have faced any difficulty, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं या आपकी कोई सजेशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए सेक्रेटेरिएट के लिए, ताकि हम नेक्स्ट ईयर उसको कैटर कर लें। तो आप उसमें जरूर अपना फीडबैक हमें दें, पॉजिटिव फीडबैक दें, नेगेटिव फीडबैक है तब भी दें,
तो ऑब्वियसली वो सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वी कंसिडर दैट फीडबैक। Please guide the club activities on AIS. This is only AIS के ऊपर जो आपने एंट्रीज करनी है, it pertains only to the CCA जो एकेडमिक कैलेंडर में आपकी प्लान हुई हुई है। जो आपके क्लब्स हैं वो आप AIS के ऊपर नहीं अपलोड करेंगे। क्लब्स के लिए आपको रजिस्टर्स दिए हुए, वहां पे आप मेकर स्पेस और CCA क्लब्स, उसके लिए आपकी वहां पे एंट्री है। क्वेरी अब इनकी क्लियर हो गई होगी, बिकॉज़ इन्होंने 934 पे पूछे, तो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड दैट रजिस्टर सेक्शन। If still you are confused, so you can always get more back. than 2200 students in each wing, like junior, middle. ये कहाँ का है? Hamza, junior. So should we have only one CCA coordinator? How will she manage with that? APS Junior Hamza, can you please come on the microphone? Yes. Please unmute yourself. APS Junior Hamza, can we talk to you? ये वाला नीचे नहीं, अभी आप ऊपर थे ना, तो मैं ये देखिए सबसे आखिर में नीचे इस साइड पे लेफ्ट ये जी APS Junior Hamza, जी। please unmute your mic. And again you have cameras आपके on नहीं है। Please turn on your camera. Please turn on your camera and ask your query. इनकी प्रिंसिपल जो है जूनियर कैंप के, is there a separate principal या इनकी जी इनके separate principals हैं। जी अच्छा मैम, we have more than 2200 students in each wing, like junior, middle and senior, so should we have only one CCA coordinator? अगर देखिए आपके sections different हैं और आपके principal and management different है, तो obviously CCA coordinator भी हर उसमें separate होंगे जी। तो ये अगर पूरा का पूरा कैंपस ही डिफरेंट है, तो फिर वो डिफरेंट CCA कोऑर्डिनेटर्स उसको कैटर कर रहे होंगे। तो हमजा में तो बॉयज, गर्ल्स और जूनियर के अलग अलग से उनके विंग्स हैं और अलग अलग से उनकी मैनेजमेंट है। सो they won't be one CCA coordinator, and that is not possible कि all three wings को जो है एक CCA coordinator मैनेज कर रहा हो। जूनियर से नहीं होगा, हेड बॉय एंड हेड गर्ल only जो है वो ऑफ करते हैं। Okay, so we have a query from JS Public School and College. JS Public School and College. Please unmute your mic. जी अस्सलाम वालेकुम। I want to ask the question about CCA clubs. ये जो आपने कहा है ना कि clubs है और इसका एक इंचार्ज होगा। For example, our dramatic club and in charge is from the junior section. हमें ज़ाहिर पूरे स्कूल में से बनाना पड़ेगा ना। So how is it possible that junior section in charge will organize that dramas from senior and middle? वो कैसे, मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आई। जैसे अभी हमारा का ना, I would like to clarify that जो आपके clubs हैं वो class 4 से start, ठीक है, जूनियर लेवल पे आपके क्लब्स नहीं, तो जूनियर को तो आप वैसे ही इससे प्री और जूनियर इससे निकल जाते हैं। और आपकी जो क्लब एक्टिविटीज हैं, जो आपके इंटर हाउस कंपटीशन होते हैं, हाउसेस जो हैं वो सारे क्लब की एक्टिविटीज आपकी क्लास 4 ऑनवर्ड्स होंगी। तो आपके लिए मतलब आई वुड सजेस्ट कि बेहतर यही है जो आपका क्लब इंचार्ज है मिडल या सीनियर लेवल से होना चाहिए। तो जूनियर में हम क्लब एक्टिविटीज वैसे भी नहीं बच्चों को ऑफर कर रहे होते। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। You want to ask something else? अच्छा जी अच्छा, आपने कहा मिडल और सीनियर में है, ठीक है, तो हमें जो इंचार्ज आप कह रही है ना कि ये क्लब्स के जो इंचार्ज बनाने हैं, तो वो मिडल में से भी हो सकते हैं, सीनियर में से भी हो सकते हैं। अभी हमारी जो सीनियर की एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल वी आर पार्टिसिपेटिंग इन स्टेम एक्टिविटीज ऑफ FBISC, तो ये जैसे नाथ है, किरत है, तो वो अगर फर्ज करें किरत और नाथ हमारी मिडल की जो है, तो वो जो मिडल वाली इंचार्ज है वो उसको प्रिपरेशन करवाएगी। ये इसको प्लीज क्लैरिफाई कर दें। जी बिल्कुल ही करवाएंगी, क्योंकि देखिए क्लब तो एक ही है ना, और क्लब इंचार्ज भी एक ही होगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मिडिल को भी कैटर करेगा, वो सीनियर को भी कैटर करेगा। तो हम सेक्शन वाइज क्लब इंचार्जेस नहीं होंगी, एक क्लब का एक इंचार्ज होगा फॉर द होल स्कूल। ठीक है चलो जी, बाकी टीचर्स जो है ना, वो आप टीचर्स को, स्टूडेंट काउंसिल को आप उसमें एंगेज कर सकते हैं, आप टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, तो वो हाँ ऐसे ही है। जी APS Baroda अटक। प्लीज अनम्यूट योर माइक।
APS बरोथा अटक गई। एक ओगुल भी लेना इन सबका। जी प्लीज आस्क योर क्वेरी। APS Barodha, can you hear us? Unmute yourself. दीदी मैम अस्सलाम Otherwise, move to वालेकुम। the next participant. जी मिसेस अदीला सदर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये बात पूछनी Miss थी Adila कि Sadaf, you want to ask something, please unmute yourself. एम आई ऑडिबल? जी यू आर ऑडिबल। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि प्री विंग से रिलेटेड मैंने बात करनी थी कि जो सीसीए कोऑर्डिनेटर है तो वो प्री विंग का भी डेटा सीसी रजिस्टर पे मेंटेन करेगा या प्री विंग खुद से करेंगे? प्री विंग तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि वो इसका पार्ट नहीं है। दिस इज ओनली फॉर जूनियर, मिडिल एंड सीनियर विंग। We have already answered In the this query. beginning, Samreen already has mentioned this thing. Pre का data आपका that is their discretion, वो किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो खुद करेंगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू। सारी एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं। एक्टिविटीज भी डिफरेंट हैं एंड दे हैव जी, लॉट जी, जी, ऑफ एक्टिविटीज रोजाना की बेस पे उनकी हो रही होती है, सो दैट इज जी, जी, जी। इससे पहले एज अ सीसी कोऑर्डिनेटर मैं करती रही हूँ तो इसलिए मैं क्लियर करना चाह रही थी बस। ठीक है जी, थैंक यू। APS and C सरगोदा के। जी प्लीज अनम्यूट योर माइक। SGDH. जी APS Sargodha, please unmute yourself. Yes. Assalamu alaikum. Am I audible to you? Yes. जी यू आर। Okay, I have a question. As you said that कि जो मेकर स्पेस क्लब एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स हैं वो मिडिल विंग से ऑनवर्ड सीनियर सेक्शन तक जाएंगे। बुकलेट में तो ऐसे से ही लिखा हुआ है कि क्लास 4 से ऑनवर्ड जो है मेकर स्पेस क्लब प्रोग्राम्स जो है वो हम इनिशिएट करवाएंगे बच्चों से। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने भी जिक्र किया कि जूनियर के बच्चे भी जो हैं उनसे भी हमने मेकर स्पेस प्रोग्राम या क्लब एक्टिविटीज जो हैं वो भी हमने बच्चों की क्लब्स वगैरह बनाने। तो काइंडली ये इंश्योर कर दें कि बुकलेट में तो क्लास 4 से लेके सीनियर विंग तक है, लेकिन आपने भी कहा है कि जूनियर विंग को भी इंक्लूड करना है। ये नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, आपने इसको मिस इंटरप्रेट किया। हमने ये कहा था कि जूनियर विंग जो है वो उसपे क्लब एक्टिविटीज कभी भी ऑफर नहीं होती। वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनके साथ सिर्फ सीसीएस जो हमने एकेडमिक कैलेंडर में दिए हुए होते हैं वो उसी को वो कर रहे होते हैं। तो आपकी जो क्लब एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ क्लास 4 ऑनवर्ड्स हैं एज पर प्रैक्टिस। जूनियर स्कूल इसमें से एग्जाम्प्ट किया हुआ है हमने। मिस इंटरप्रेट कर लिया आपने। ओके, थैंक यू। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपने AAS का पोर्टल बनाया है सीसी कोऑर्डिनेटर्स के लिए, आई ट्रूली अप्रिशिएटेड, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि उसमें अगर हमारे पास पिक्चर वाला ऑप्शन भी आ जाए तो ये कि विद एविडेंस हमारा जो एक रिकॉर्ड है ना वो वहाँ पे AIS पे अपलोड हो जाए और उसकी अगर हमें हार्ड फॉर्म या प्रिंट वगैरह भी हमें निकालना पड़े तो हमारे लिए ज्यादा। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये सारी बात एक्सप्लेन की है, आपने शायद सुना ही नहीं, आपने दोनों बातें नहीं सुनी। ये दोनों बातें हम अभी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन करके हटे हैं, ठीक है। सो प्लीज एवरीवन बी अटेंटिव, क्योंकि ये रिपीटेडली बार बार हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो आपकी जो सजेशन है ऑलरेडी नोट डाउन कर ली हुई है। हमारी IT टीम जो है दे लुक इनटू इट कि अगर पिक्टोरियल एविडेंस भी हम उसके साथ ले लें तो वी हैव ऑलरेडी नोटेड डाउन द क्वेरी। थैंक यू। दूसरा जो आपका पार्ट था कि यू वांट टू डू अवे विद द रजिस्टर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बारे में आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ये रिकॉर्ड जो है ये डबलिंग नहीं है। देयर आर सम प्लेसेस वेयर इंटरनेट इश्यूज होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द डाटा ऑन AIS। सो हमें अभी साइड बाय साइड ये दोनों चीजें लेके चलना है, ठीक है। AIS पे भी आपको करना है और वो रजिस्टर। अगर आप ये कहिए कि यू वांट टू डू अवे विद द रजिस्टर, अगर तस्वीरें वहां अपलोड हो जाती हैं तो ऐसा नहीं। अच्छा नहीं, दूसरा इसमें ये है कि आपका जो CCA रजिस्टर है ना उसके अंदर हम डिटेल डेटा मांग रहे हैं कि आपने इसमें तो हमने ओवरऑल मांगा ना कि एक एक्टिविटी कराई, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कि आपके अगर 2500 स्टूडेंट्स हैं तो 1500 बच्चे आपने लिख दिए इस एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट करवा लिए। लेकिन जो आपका CCA रजिस्टर है ना उसमें हम क्लास वाइज डाटा ले रहे हैं कि उसमें हमें ये पता चलेगा एज एन एवेल्युएटर, अगर मैं उसको देखती हूँ तो मुझे ये पता चलेगा आपने ये एक्टिविटी जूनियर, मिडिल, सीनियर के सब बच्चों, सब सेक्शंस के साथ करवाई है फर्स्ट, ठीक है। सेकेंडली उसके अंदर ये इतना डिटेल डाटा हम नहीं मांग रहे। वो डाटा बेसिकली हम आपके लिए और अपने लिए हमने ये फॉर्म बनाया कि किसी भी वक्त अगर हमें अचानक से कोई डाटा चाहिए होता है तो हम AIS पे जाके वो फौरन से एक्सट्रैक्ट कर सकें। सेकेंडली जो आपके जितने क्लब्स हैं
और जितने आपके हाउस रजिस्टर्स हैं उसका डेटा तो हम कॉम्पिटिशन का वहां पे नहीं मांग रहे ना उस तरीके से AIS के ऊपर, उसके लिए यू हैव टू फिल द CCA क्लब्स एंड मेकर स्पेस प्रोग्राम रजिस्टर एंड हाउसेस रजिस्टर एज वेल। सो वो डुप्लीकेशन कहीं से भी नहीं है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। AIS पे जो है वो हमें एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो डेटा की आता है। तो आई होप आई एम क्लियर। जी मिस मलिहा इकबाल, प्लीज अनम्यूट योर माइक। जी प्लीज। Assalamu alaikum. Can you hear me? I am the CCA coordinator from Army Public Junior School Multan. Sir, my question is that as you have already told that we have to, if any student who has got the first position in mega competition of Naat, Kirat या कोई भी competition हो रहा है, and we have to complete the information about the first winner in AIS form. And we are going to expose the each 1 mark to that you have already told कि हमने उसको 1 point देना है. So my question is that either it is included, what is the criteria about that? This 1 mark will be included in their result or not in the result. What is the criteria? We haven't mentioned anywhere that the result will be included in the academics. अच्छा, पहली बात तो ये है कि 2-4 का सेशन हमने ट्यूसडे को करवाया था, so आपने ट्यूसडे वाला सेशन अटेंड नहीं किया था? किया था मैम, तो फिर आपको आज चाहिए कि आप और लोगों को मौका दें, ठीक है, बिकॉज आज तो आपकी टर्न ही नहीं है। तो आज तो टर्न में जो है वो AG ब्रांच, JS, AD कमांड, 30 कोर, ISI, नौशेरा अटक और 12 कोर के स्कूल्स हैं, ठीक है। तो आपकी जो क्वेरी है वो उसमें बिल्कुल भी हमने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ। तो अभी जो लोग दोबारा से ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी टाइम मिल चुका है, तो अभी पहले हम उन लोगों की क्वेरी लेंगे जिनके लिए आज का सेशन हमने अरेंज किया हुआ है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप की जो क्वेरी हमने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि एकेडमिक रिजल्ट में ये नंबर ऐड होंगे, ये CCAs हैं, दिस इज अ सेपरेट थिंग। तो बिल्कुल उसके अंदर आपने ये इधर से कंसीव किए जहां समरीन वाज सेइंग कि ये रिजल्ट जो आपका इन कॉम्पिटिशंस का रिजल्ट है उसकी बात हो रही थी। इट हैज नथिंग टू डू विद द एकेडमिक रिजल्ट। ये आपके रजिस्टर में ही हाउस का है ना? हाँ जी, हाउस जी, और ये इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस हैं, ठीक है। इंटर हाउस का मतलब है कि जो 4 हाउसेज हैं उनके बिटवीन जो कंपटीशन, उनके अमंग जो कंपटीशन हो रहा है उसमें जो हाउस विन कर रहा है उस हाउस को मार्क्स मिले, ठीक है जी। APSC माइनर हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं APS हमारी रोड से हूँ। हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि हमारी क्योंकि बिल्डिंग जो है सेपरेट है, सीनियर विंग सेपरेट है, देन वी हैव मिडिल जूनियर विंग वो अलग है, तो देन वी कैन नॉट मेंटेन 1 रजिस्टर। सो फिर हम सेपरेट कर रहे हैं रजिस्टर्स को, और जो डेटा एंट्री कर वो भी डेटा एंट्री भी जो है। अच्छा, डेटा एंट्री कोई इतनी ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा कोई टीडीएस किस्म का नहीं है टास्क। आपने देखा ही है कि AIS पे भी जो फॉर्म है दैट इज वेरी सिंपल। अगर रजिस्टर्स की बात करें तो उसमें भी हम लोग कोई उसमें एक्सटेंसिव किस्म की रिपोर्ट्स नहीं मांग रहे, फैक्ट्स एंड फिगर्स ही मांग रहे हैं। सो बिल्कुल आपके आमने सामने ही है सेक्शंस, वी नो दैट। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप एक असिस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज पूरे स्कूल का एक ही CCA कोऑर्डिनेटर है, बिकॉज द पॉलिसी विल स्टे फॉर सेम फॉर एवरीवन। तो हमने उस डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए इस साल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता था शुरू में, मिस उमेरा ने भी आपको बताया, तो उसको अवॉइड करने के लिए ओनली 1 CCA कोऑर्डिनेटर। एंट्री फिर एक ही होगी, मतलब पूरे कॉलेज। देखिए वो आपके लिए भी इजी है ना, आप एक ही रजिस्टर लेके बस उसको अपने पास रखिए। ठीक है जी, थैंक यू जी। APSC DH phase 1। जी प्लीज आस्क योर क्वेरी। I want to ask that we have to maintain e-registers and we have to do manually both. I guess आप multiple devices से इस वक्त ज्वाइन किया हुआ, तो प्लीज म्यूट अदर डिवाइसेस। आपकी आवाज एको हो रही है। आप ये हेडफोन उतार के प्लीज क्वेश्चन करें, हेडफोन डिस्कनेक्ट करें।
आप लैपटॉप का माइक्रोफोन या मोबाइल का अभी ऑडिबल है? जी जी। हाँ जी, I want to ask question that we have to maintain the data both in e-registers and manually, या सिर्फ manually करेंगे like hard copies में? अच्छा, आपके जो रजिस्टर्स है ना, ये आपको एडिटेबल पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड हुए हुए हैं, ठीक है। तो आपने एआईएस पे तो करना ही करना है, आप ये नहीं करेंगे कि एआईएस पे करके यू कैन गेट अवे विद द रजिस्टर्स। रजिस्टर्स भी मैंडेटरी हैं और एआईएस भी मैंडेटरी है, पहले तो सबके लिए ये बात क्लियर हो जाए। दूसरा ये कि आपके जो रजिस्टर्स हैं वो हार्ड कॉपी भी आप यूज कर सकते हैं, और आप सॉफ्ट पीडीएफ जो एडिटेबल वर्जन है अपलोड हुआ हुआ है वो भी यूज कर सकते हैं। तो अगर, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं करेंगे कि आप हार्ड में भी कर रहे हो और ई फॉर्म भी कर रहे हो। तो बोथ द फॉर्मेट्स आर एक्सेप्टेबल बाय एपसेक्स सेक्रेटेरिएट, बल्कि हम इनकरेज करते हैं कि आप सॉफ्ट वर्जन यूज करें, इसमें पेपर वेस्टेज नहीं होती आपकी। Thank you. My next question is inter-house competitions for junior. They are going to take place since the academic event calendar है उसके अंदर it's mentioned कि inter-house competitions junior में conduct करने हैं. जी, इंटर हाउस कंपटीशन बिल्कुल, उसके अंदर हमने दिया हुआ स्पेलेथॉन और इनके नात एंड किरात कंपटीशन जूनियर स्कूल में हमने बिल्कुल दिए हैं। इंटर हाउस कंपटीशन उसमें आप करवाएंगे, क्लब एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे। हाउस कंपटीशंस तो होंगे क्योंकि जूनियर में हाउसेस तो होते हैं ना, हाउस सिस्टम तो जूनियर से स्टार्ट हो जाता है, तो हाउस एक्टिविटीज एप्लीकेबल हैं जूनियर स्कूल के ऊपर। And my last question, ma'am, is that हर सेक्शन का अलग हाउस इंचार्ज होगा फॉर ईच हाउस, या एक हाउस इंचार्ज होगा फॉर द होल हाउस? स्कूल का एक हाउस इंचार्ज होगा, ठीक है। पूरे स्कूल के लिए हम शुरू में बता चुके हैं, जब मैंने हाउस रजिस्टर्स की बात स्टार्ट की थी तो आई मेंशन दैट हर हाउस के लिए पूरे स्कूल का सिर्फ एक हाउस इंचार्ज होगा, ठीक है। डिसिप्लिन का एक, यूनिटी का एक, फेथ का एक और टॉलरेंस का एक, ठीक है। 4 हाउस इंचार्जेस हैं। उसके अंडर अगर आपके स्कूल की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप हर हाउस के साथ एक असिस्टेंट हाउस इंचार्ज रख सकते हैं, पॉलिसी उसकी दी हुई है हैंडबुक के अंडर। और बाकी आपकी जो है स्टूडेंट काउंसिल, बाकी टीचर्स भी हाउस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो बेसिकली ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए और मीटिंग्स के लिए जो है वो पूरे क्लब का इंचार्ज जो है वो एक बंदा होगा, रिप्रेजेंटेटिव एक बंदा होगा, मल्टीपल, ठीक है जी। एपीएस बलकर सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। I have a lot of questions, तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो फिर आप क्या आपके क्वेश्चंस पहले किसी ने और ने नहीं पूछे, ठीक है। अगर किसी और ने पूछ लिए मैं तो मैं उनको आंसर नहीं करूंगी। ओके मैम, नो प्रॉब्लम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो प्री की एक्टिविटीज है, मेरे पास जो बुकलेट है सीसीए की, जो अभी आपने मुझे इधर स्क्रीन पे शो भी करवाई है, उसमें प्री की एक्टिविटीज जो है वो उसमें मेंशन नहीं है। क्लास 1 to 8 मेंशन है, इस तरह एसएससी लेवल की है और एचएसएससी लेवल की है, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ, अब मुझे बताएं मैं इसका जवाब दूं कि नहीं दूं आपको, ठीक है। ये आई टेल दिस फॉर द 4th टाइम दैट दिस एकेडमिक कैलेंडर एंड दिस टुडेस जूम सेशन इज ओनली एड्रेस्ड टू द सीसीए कोऑर्डिनेटर्स फॉर जूनियर, मिडिल एंड सीनियर लेवल। हम लोग प्री स्कूल पे आज कोई बात नहीं कर रहे। प्री स्कूल की टीम यहाँ पे डिफरेंट है सेक्रेटेरिएट में, उनकी एक्टिविटीज भी सेपरेट है। जी, ठीक है मैम। एआईएस पर कुछ तो इवेंट्स के रिकॉर्ड मैंने अपडेट किए हैं, और उसमें मुझे ये आ रहा है प्रॉब्लम कि मुझे सिर्फ सीनियर स्कूल की जो सीसी एक्टिविटीज हैं वही उसकी लिस्ट ही शो हो रही है। बाकी जो जूनियर मिडिल में है, क्योंकि हमारा एक ही सीसीए कोऑर्डिनेटर है, तो जूनियर मिडिल की मुझे एक्टिविटीज नहीं शो हो रही। आप एग्जांपल देंगी कि किसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है? फॉर एग्जांपल जो इंटरनल सीसीए है उसमें मुझे सिर्फ सीनियर सेक्शन की जो उनके कैलेंडर में सीसी एक्टिविटीज शो हो रही हैं, लाइक एज एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड ट्री प्लांटेशन, इस टाइप की एक्टिविटीज शो हो रही हैं, अमन शो हो रहा है। ये एनवायरमेंट अवेयरनेस तो हमने जूनियर लेवल से दिया हुआ है। आप कैलेंडर खोल के दोबारा देखिए प्लीज, आप उसको मिस कर रही होंगी। आपने सारे कैलेंडर्स खोले हैं? यस मैम, सारे मैंने खोले। हमारे जूनियर का कैलेंडर अलग है 4 to 8 और उसके बाद आपके सीनियर के कैलेंडर्स अलग आते हैं। तीनों में एक्टिविटीज हैं, बिल्कुल दी हुई है। आई एम 100% श्योर अबाउट इट, प्लीज रीचेक। ओके मैम। और थर्ड मेरा क्वेश्चन है कि
ये जो आपने कहा कि रजिस्टर सीसीए रजिस्टर अपडेट करने का आपने बताया कि इसकी सॉफ्ट कॉपी हम रख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक मैम ई रजिस्टर भी है और एक अभी आज आपने जो स्क्रीन पे शो किया सीसीए रजिस्टर वो भी है, क्या ये दोनों मेंटेन करने होंगे? ई रजिस्टर आप एआईएस की बात कर रही हैं? एआईएस पे ही अपलोडेड है ई रजिस्टर, उसकी जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में अपलोड हुआ है और वो लास्ट टाइम हमने किया था। वही रजिस्टर मैंने आपको शो किया, मैंने कुछ भी डिफरेंट शो नहीं किया। मैंने ये बताया कि आप हार्ड में मेंटेन कर लें अगर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म है, और अगर प्रिंटेड नहीं है तो आप सॉफ्ट में भी मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। डाटा टेम्पलेट बिल्कुल सेम है, रजिस्टर बिल्कुल सेम है, हार्ड में भी वही है, सॉफ्ट में भी वही है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप कर लें। मतलब कि ई रजिस्टर नहीं करना मुझे अपडेट, सीसीए रजिस्टर जो है वो अपडेट करना है। दोनों करने हैं, एक एआईएस पे आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है और दूसरा ये जो 6 रजिस्टर्स हैं ये भी फिल करने हैं। दोनों ई रजिस्टर भी और सीसीए रजिस्टर भी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो वीकली एक्टिविटीज होती हैं, क्लैरिटी नहीं आती ना तो प्लीज ये जो यूट्यूब लिंक भी हमने एक आरडीएस के साथ शेयर किया, आप शाम को घर में बैठ के उसको दोबारा से भी सुन सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है। ये ई रजिस्टर्स एंड एआईएस के ऊपर जो है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ई रजिस्टर और आपके जो हार्ड कॉपी में रजिस्टर हैं, आप उसमें ऑप्शन है कि आप अगर उस पे मेंटेन करना चाहते हैं या फिर आप लिख के अपने रजिस्टर्स पे मेंटेन करना चाहते हैं। बट एआईएस के ऊपर जो आपकी ऑप्शन है वो कंपल्सरी है, देयर इज नो चॉइस इन दैट। Everybody has to fill in that record on AIS. I hope आप your पहले queries सारा are- कुछ जो अपलोड हुआ है ना उसको गौर से देखें, पहले आप अपने कैलेंडर्स भी देखें, उसके बाद आप जितना कुछ हमने अपलोड किया है ओपन करके और फिर दफा तब आपको समझ आएगी। ठीक है, अभी आपने गौर से देखा नहीं है क्योंकि एक्टिविटीज भी जैसे आप बता रही हैं कि सीनियर के हैं, दे आर ऑल गिवन इन द जूनियर लेवल एज वेल, मिडिल में भी। ई रजिस्टर भी मैंने विजिट किया है और सीसीए भी जो आपने आज दिखाया वो भी मैंने किया है और दोनों मैंने मेंटेन किए हुए हैं। तो मैं इसलिए ऑप्शन के तौर पे पूछ रही हूँ कि मुझे दोनों करने हैं या दोनों में से एक करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम के हाउस कैप्टन आपने कहा कि जूनियर लेवल पे भी हो सकते हैं, मुझे ठीक ये है। बताएं ई रजिस्टर्स में और जो दूसरे रजिस्टर्स हैं इसमें डिफरेंस क्या है, आप क्या कहना चाह रही हैं? जो सीसीए का रजिस्टर है उसमें थोड़ा बहुत फॉर्मेट का डिफरेंस है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए डिटेल में, और जो ई रजिस्टर है उसमें मेकर स्पेस और सीसीए दोनों के जो है वो एक्टिविटी की मोर डिटेल्स गिवन है। देखिए आप प्लीज कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। आपके 6 रजिस्टर्स हैं, देयर आर 6 रजिस्टर्स जो अभी मैंने बताए हैं। आई होप यू हैव अटेंडेड द सेशन केयरफुली। ठीक है, आपका एक रजिस्टर है फॉर सीसीए एक्टिविटीज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रजिस्टर जो सीसीए कोऑर्डिनेटर के पास होगा। एक रजिस्टर का नाम है सीसीए क्लब्स एंड मेकर स्पेस प्रोग्राम रजिस्टर, ये रजिस्टर नंबर 2 है, दैट इज रजिस्टर फॉर क्लब एक्टिविटीज। देन वी हैव 4 हाउस रजिस्टर्स जो कि इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स के लिए हैं, तो 6 रजिस्टर्स हैं टोटल। ठीक है, और इसके अलावा 7th जो चीज है दैट इज एआईएस फॉर्म, जो कि सॉफ्ट फॉर्म हमने ऑनलाइन फॉर्म डेवलप किया है एआईएस के ऊपर। तो ये 7 की 7 चीजें जो है वो फिल होंगी। ठीक है, ठीक है मैम। और एक आपने बताया है कि जो है वो इसकी सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्रिंट आउट लें, तो इट्स बेटर कि अगर इवैल्यूएशन। सर अभी आपने बोला है कि जो है सॉफ्ट कॉपी मेंटेन कर सकते हैं रजिस्टर्स में, ठीक है, चाहे वो कोई भी रजिस्टर है, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करनी है, तो क्या ये बेटर ऑप्शन नहीं है कि इवैल्यूएशन जब आए तो मिस हैप से बचने के लिए हम उसके प्रिंट आउट ले लें, और क्योंकि प्रिंसिपल से सिग्नेचर्स भी करवाने हैं और कोऑर्डिनेटर से भी। नहीं देखिए, अगर आपको लगता है कोई मिसहैप हो जाएगा तो फिर आप हार्ड में ही रजिस्टर्स को सेव करें। ठीक है मैम। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में मिसहैप हो जाते हैं, मतलब वो डाटा उड़ जाए इस तरह का, वही कह रहे होंगे कि अगर वो किसी वक्त बैकअप फाइल आप रख लें, ईमेल कर लें खुद को, देयर आर सो मेनी ऑप्शन, गूगल ड्राइव में रखें उसको। और दूसरा साइन कराना भी इज नॉट अ हार्ड थिंग, आपके पास ई साइन की ऑप्शन होती है, दे कैन ऑलवेज ई साइन एज वेल। अगर आपका ये ख्याल है कि सिग्नेचर के लिए सिर्फ आपको हार्ड कॉपी मेंटेन करनी है तो आई थिंक देखिए डुप्लीकेशन जो है ना दैट इज हाईली डिस्करेज। डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड को ही अवॉइड करने के लिए हमने मल्टीपल रजिस्टर्स खत्म कर दिए हैं जूनियर मिडिल सीनियर लेवल पे, एक चीज मेंटेन करें। ठीक है, हम उसके हो सकता है हम उसके मार्क्स भी काट लें अगर आप 2-2 चीजें रख के बैठे। और उसमें ये है कि अगर आप ई रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं तो
उसमें भी आपने वो सारे जो कॉलम्स या जो सारी स्पेसिस है वो फिल करनी है जो दी हुई है। अगर उसमें भी साइन है तो वो चाहे हार्ड है चाहे ई है वो साइन होने हैं। तो ये नहीं है कि अगर वो ई में रिकॉर्ड मेंटेन है तो उसके कुछ कॉलम्स हम जो है वो खाली छोड़ दें, जो है वो उसी तरह फिल होना है। तो वो आप ई साइन जो है और डेफिनेटली आपके प्रिंसिपल के या कोऑर्डिनेटर के जहां पे भी साइन है वो उस रिकॉर्ड को देखेगा। ई में होने का ये मतलब नहीं है कि वो उसको देखेंगे ही नहीं, उनकी सुपरविजन होनी चाहिए जैसे हार्ड कॉपी को वो देखते हैं। जी एपीएस गर्ल्स से आपको मैम एक्चुअली आई वांट टू कंसर्न अबाउट द सीसीए पीरियड जो वेंसडे वाले दिन 0 पीरियड में प्लान है, लाइक द सीसीए इंचार्जेस आर डिसकंटिन्यूड नेक्स्ट। तो क्या मतलब वो उसकी मीटिंग्स करना स्टाफ के साथ या फर्दर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है सीसीए पीरियड की ये सीसीए कोऑर्डिनेटर करेगी या मतलब व्हाट अबाउट दैट? अच्छा आप क्या कह रही हैं कि सीसीए इंचार्ज डिसकंटिन्यू हो गए हैं, हमने ये कहा है? मैम लाइक सीसीए इंचार्जेस विंग वाइज नहीं है ना, सीसीए कोऑर्डिनेटर ओवरऑल एक है जो मतलब पुलिस वाली पूरे स्कूल को देखे। ठीक है। तो जो सीसीए पीरियड मतलब हर विंग में हर सेक्शन में जूनियर मिडिल एंड सीनियर में सेपरेट हो रहा है, मिडिल टू में लाइक टिल क्लास 8। पीरियड तो हमने दिया हुआ है, ठीक है। पीरियड हमने क्लास 1 to सेकंड ईयर हमने इस दफा फॉर ऑल लेवल्स हमने सीसीए पीरियड दे दिया है ऑन वेडनेसडे फॉर ऑल क्लासेस। लेकिन सीसीए कोऑर्डिनेटर एक ही है तमाम सेक्शंस के लिए, सेपरेट नहीं होंगे। ऑलराइट, जो प्लानिंग करनी है वो तो टीम ने करनी है ना, सारे मिलके बैठ के यूनानिमसली वो चीजें डिसाइड होंगी। एग्जैक्टली, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी कोऑर्डिनेशन की और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग की वो सारी सीसीए कोऑर्डिनेटर के ऊपर आएगी। She has to ensure कि टाइम पे मीटिंग्स हो रही है, टाइम पे एक्टिविटीज हो रही है, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग टाइमली हो रही है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द रीजन उनका वर्कलोड भी हम लोगों ने इसीलिए रिड्यूस किया है ताकि उनको ये सब टाइम मिले ये सब कोऑर्डिनेशन के लिए। ऑलराइट, थैंक यू मैम। चलिए एपीएस भरोसा इन ये अनम्यूट नहीं किया था किसी और से, एपीएस भरोसा उनका स्टक हुआ है। एपीएस ऑर्डिनेंस वॉइस यस जी प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योर क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम यू आर ऑडिबल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। I am Ujala Sim from APS Ordinance Road. Please ये जरूरी है, नेसेसरी है कि हेड बॉय जो है वो इलेक्शन के थ्रू ही सिलेक्ट किए जाए या नॉमिनेट भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसका पर्पस ये होता है स्टूडेंट काउंसिल का कि जो इलेक्शन का एक कॉन्सेप्ट एक तो बच्चों को हम देते हैं कि सारा इसमें लीडरशिप क्वालिटीज के लिए कि वो किस तरीके से एक कंपटीशन है जिसमें बच्चे विन होके एक तरह से वो उनके लिए एक इंटाइटलमेंट होती है कि वो इलेक्शन के थ्रू और बच्चों की अपनी जो मेजॉरिटी है स्कूल्स की उन्होंने उस बच्चे को अपना लीडर एक्सेप्ट किया है। तो ये बिल्कुल दैट इज मैंडेटरी और इसी प्रोसेस के थ्रू ही इलेक्शन के थ्रू ही उनका नॉमिनेट होना जरूरी है, उनका इलेक्ट होना जरूरी है। Obviously, it's based on results and everything. आपने maintain किए हुए हैं. And secondly, I would suggest, please, मैंने आपको beginning में भी बताया था कि you need to go through the APSACS Co-Curricular Activities and Holistic Development Program booklet, because इसमें detail में बताया हुआ है how to go about the head boy head girl procedure. पूरा process उसके अंदर। तो जब तक आप ये book hand अपनी download करके पढ़ेंगे नहीं तो आपको वो clarity नहीं आएगी। इवन अगर हम आपको एक एक चीज के लिए बताएंगे ये करें और वो करें, सो इट इज सजेस्टेड कि आप वो बुकलेट अपने पास डाउनलोड करके रख लें हार्ड कॉपी में, एंड यू कैन कंसल्ट इट व्हेनेवर यू फील लाइक कोई भी एम्बिग्विटी हो तो। डू यू हैव एनी अदर क्वेरी? ओके, थैंक यू। जी एपीएस फुटबॉल गर्ल्स। Assalamualaikum. Ma'am, first of all, I would really appreciate the new step in AIS regarding CCA forms. I just want to add a suggestion that there must be an edit option for the CCA forms, as there is only delete option. Okay, fine. We have noted down the query. We will look into it. बिल्कुल ठीक है. Thank you so much. I would like to add at this point
क्योंकि देखें कहीं ना कहीं हमें यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है टू ताकि वो मिस्टेक्स कम से कम करें, ठीक है। जैसे आपने पहले मार्क्स शीट के अंदर आपने दिया हुआ था, प्रोवाइड किया हुआ था एडिट ऑप्शन, ठीक है, वहाँ पे मार्क्स शीट पे कम से कम मिस्टेक्स हो रही। जब हमने वो प्रोवाइड कर दिया, हम ऑब्जर्व, क्योंकि हम तो बैकएंड पे देख रहे हैं, तो टीचर्स क्या कर रही है, मैक्सिमम ऑफ मिस्टेक्स कर रही हैं, इसको बहुत इजी ले रही है। क्यों? क्योंकि इट्स एन एडेड लोड ऑन द सर्वर, ठीक है। तो फिर आपको उसको अवॉइड करें, इंक्रीज रिस्पांस टाइम का एक आ रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम माइंड में रख के ये चीजें करें। एट दिस पॉइंट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस, बट इन फ्यूचर हम इसको फिर इंशाल्लाह देंगे। Sir, there is another point that you could allow the DBA in charge to edit only. So in case the CCA, will be restricted and it will be a step for her. Okay, oh, I have to go to the DBA now. है ना, अगर वो CCA coordinator है या DBA है, there will be only one person who is going to enter the data. ये आप multiple लोगों otherwise भी शेयर नहीं करेंगे। पर्पस ये नहीं है कि एडिट का ऑप्शन देना नहीं है, पर्पस ये है कि मिस्टेक्स कम से कम हो, ताकि उसको एडिट या डिलीट जो है ना वो करना। आपके पास प्रीव्यू करने का और ओवरव्यू करने का तो ऑप्शन है ना, कि जब आप डेटा डालेंगे तो आप उसको डबल चेक करें और फिर आप उसको सेव करें। तो आई थिंक Thank you. APSACS बॉयज समझा जाए, बॉयज समझा से पहले हमने क्वेरी की। अच्छा, APSACS बॉयज समझा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, प्लीज मैम आई वांट टू आस्क कि जो रजिस्टर आप कह रहे हैं कि एक ही मेंटेन करना है, तो जब इवैल्यूएशन टीम आएगी तो हम कहाँ पर, मतलब सेक्शन हेड ऑफिस में रजिस्टर्स हम रखेंगे या प्रिंसिपल ऑफिस में? और क्योंकि हम अब एक ही रजिस्टर मेंटेन करेंगे, पहले तो हम मिडिल और बॉयज मिडिल और सीनियर का अलग अलग करते थे मेंटेन। ऐसा है कि ये देखें, ये रजिस्टर जो है ये आपसे जो भी होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो फॉर्म फिल करने आएगा वो आपसे मंगवाएगा। अब वो जहां भी, अगर वो किसी जूनियर हेड के पास बैठा हुआ है या सीनियर के पास बैठा हुआ है, वो देखिए अगर आपने प्लेस करवाया वो प्रिंसिपल ऑफिस में, तो यू कैन ऑलवेज वो आप उसको मंगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जहाँ पे भी हो पूरा रिकॉर्ड एक जगह पे ही होना चाहिए, तो वो एवेल्युएटर खुद भी वहां पे जाके देख सकता है। और अगर वो किसी और जगह पे बैठा है, फॉर एग्जांपल जो कॉन्फ्रेंस रूम आप हमें प्रोवाइड करते हैं, और वहां पे अगर वो मंगवाना चाहे तो वो वहां भी मंगवा सकते हैं। अगर किसी सेकंड हेड या प्रिंसिपल के ऑफिस में वो हो तो वहां पे भी मंगवा सकता है। पर्पस ये है कि आपका रिकॉर्ड पूरा कंपाइल होना चाहिए एक जगह पे। ये नहीं कि उस वक्त आप एक रजिस्टर वहां से उठा रहे हैं, हाउस रजिस्टर वहां से उठा रहे हैं और सीसीए वहां से उठा रहे हैं। और बेसिकली ये है कि पूरा रिकॉर्ड एक ही जगह पे होना चाहिए, नो मैटर्स कि वो किसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा ये कि अब ये इशू तो उस तरीके से भी थोड़ा सा ज्यादा रिजॉल्व हो गया, क्योंकि रजिस्टर्स की मल्टीपल कॉपीज तो हमने खत्म कर दी। तो टोटल 6 रजिस्टर इवैल्यूएशन टीम ने देखने आते, तो वो 6 के 6 एक बंदे के पास मेंटेन करना। पहले होता था डिफरेंट सेक्शंस में होते थे, तो उसमें वो काफी ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन हो जाती थी और टाइम लग जाता था। तो अब सिंगल रिकॉर्ड है तो दैट विल बी केप्ट विद द सीसीए कोऑर्डिनेटर, और कहीं पे भी दिखा दें। APS सेक्टर BDHA2। अस्सलाम सर। मैम ये जो रजिस्टर आप लोगों ने हमें प्रोवाइड किया, स्टार्ट के पेजेस है हमारे पास जिनको हमने मेंटेन करना है, उसमें हमने डेट, प्लान एक्टिविटी और रिमार्क्स है। लेकिन फर्दर थोड़ा सा आगे जाके जो पेजेस है हमारे पास, उसमें हमारे पास डेट और करिकुलम एक्टिविटीज जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है कि नीचे आपने इनको मेंटेन करना है इंटरनल/एक्सटर्नल। तो हमें वहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की एक्टिविटीज को मैनेज करना उसी कॉलम में। लाइक दिस मैम आई हैव अ रजिस्टर का मतलब है कि जी स्लैश का मतलब है ईदर इंटरनल या एक्सटर्नल। जो अगर आप इंटरनल का रिकॉर्ड डाल रही हैं उसके अंदर तो आप ब्रैकेट में इंटरनल लिख दें, और अगर आप एक्सटर्नल एक्टिविटी का डाल रही हैं तो ब्रैकेट में एक्सटर्नल लिख दें। कि दोनों अगर साइड बाय साइड हो रही हैं उस मंथ के अंदर के, हो सकता है आपने 17 अक्टूबर को कोई इंटरनल एक्टिविटी कराई और 18 को कोई एक्सटर्नल कंपटीशन हो गया, तो आप तो डेटा डेट वाइज मेंटेन कर रही हैं, तो आप साथ साथ मेंशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी वंस अगेन APS प्रोथा जी APS प्रोथा के प्लीज अस्सलाम वालेकुम मैम।
जी जी, वो एक्चुअली पहले भी क्वेश्चन कर रहा था। क्वेश्चन ये है कि मैम अभी हमारा जो सीसीए एक्टिविटीज है वो सीनियर विंग्स के अगर देखी जाए तो वो फर्स्ट मई तक जा रही है। अब सीनियर्स का बर्डन और अबाउट द स्टडीज देखे जाए तो क्या हम सेकंड टर्म के बाद उनकी जी एक्टिविटीज बिल्कुल, आपको डिटेल कर दें जो एक्टिविटीज फर्स्ट मई तक जा रही हैं, और जो अगर बोर्ड की क्लासेस हैं तो बोर्ड की क्लासेस के लिए आप उन एक्टिविटीज को डिसकंटिन्यू कर दें इस साल के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त तक हमें डेट्स पता नहीं थी, वो फेडरल बोर्ड ने अभी अनाउंस किए हैं एग्जाम डेट्स, तो आप उनको डिसकंटिन्यू कर दें। और वैसे भी सीनियर की एक्टिविटीज मई तक नहीं जाती, मई तक तो हमने डाली ही नहीं है, क्योंकि बच्चे प्रिपरेशन लीव पे चले जाते हैं मार्च के बाद। APSS 340 जी, 2 more queries. We are taking 2 more queries. उसके बाद हम चैट बॉक्स में जाएंगे और अगर कुछ अनयूजुअल क्वेरी होगी तो हम वो लेंगे। जी, APSS 340 I think not there. We will move to Infinix 11 play. जी, this Infinix 11 play, please unmute yourself. I don't know your name, either the name of the school. खुद देख लें किनका नाम इनफिनिक्स आ रहा है, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। नौरीन। We will move towards this Noreen. Please unmute your mic. Assalamualaikum ma'am, am I audible? Yes. Yes, but very If you can switch on the camera, please. And can you please speak a bit louder? Assalamualaikum ma'am. Ma'am, I am from ICRA APS Junior Campus, करबेला। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे स्कूल में जो है मैं मिडिल की सीसीए इंचार्ज हूँ और हमारी जो ओवरऑल इंचार्ज हैं वो प्री से हैं, तो क्या जो रजिस्टर मेंटेन करना है वो मैंने करना है या प्री वाली सीसीए इंचार्ज ने करना है? प्री को हम एड्रेस नहीं कर रहे सेशन में। देखिए, प्री की जो एक्टिविटीज हैं मैंने पहले भी बताया है, दे आर सेपरेट। आपको भी पता होगा कि प्री का पूरा स्केड्यूल ही डिफरेंट होता है, उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट होती हैं। तो ये जो आपको हमने हैंडबुक भी जो दी है और जो एकेडमिक कैलेंडर है आप देखिए, उसमें सारी की सारी एक्टिविटीज डिफरेंट है। तो शुरू में मैं काफी दफा बता चुकी हूँ कि इस वक्त हम प्री को नहीं ले रहे। प्री से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो प्री स्कूल खुद मेंटेन करता है, उनकी सेक्शन हेड या उनकी टीचर्स खुद मेंटेन कर रही होती हैं। तो इस वक्त जो बात हो रही है वो जूनियर टू मिडिल लेवल की होगी। तो मैम जूनियर टू मिडिल लेवल का रिकॉर्ड फिर मैं मेंटेन करूंगी? आप सीसीए कोऑर्डिनेटर हैं? यस मैम। जी, आप जी शुरू से ही हम यही तो बताते आ रहे हैं। यस मैम, ठीक है, थैंक यू। क्या आपको लगता है कि कभी एपसेक्स की तरफ से प्री स्कूल को इसी में ऐड किया है क्लास सेकेंड ईयर? क्या हमने आपको कभी कहा इस तरह के इनका इकट्ठा रिकॉर्ड मेंटेन करें सीसीए का? नो मैम। तो डेफिनेटली, क्योंकि उनके जो है वो ग्राउंड रियलिटीज और है, उनकी डिमांड्स और हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी और स्किल डेवलपमेंट है ना, उनकी जो है आप जो है वो साइकोमोटर स्किल्स पे काम करते हैं, उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे काम, वो डिफरेंट एक एंगल है। और उनकी सारी एक्टिविटी बेस्ड भी उनकी उन्हीं स्किल्स को इनहेंस करने के लिए होती है, इसलिए वो बिल्कुल डिफरेंट रिकॉर्ड है, बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से उसको फिल करना है। हमने जो भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने का कहा है सीसीए का, हमने 1 से लेके सेकेंड ईयर तक की बात की है। उसमें डिफरेंट लेवल्स फिर अकॉर्डिंग टू जो एक्टिविटीज है उनके मुताबिक हमने कहा है, कुछ मेगा की हैं, कुछ इंटर हाउस हैं। तो प्री को बिल्कुल सेपरेट रखें। प्री का बाकी स्कूल के साथ उस तरह से सीसीएस में या बेकर स्पेस या क्लब्स में कोई उसका ताल्लुक नहीं है। तो काइंडली ये चीज सब जहन में रखें कि प्री बिल्कुल एक सेपरेट है, उसकी डिमांड्स और है और बाकी जो स्कूल है उसकी डिमांड्स और हैं। तो वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड होंगे और मुख्तलिफ आप देखें प्री की एक्टिविटीज मुख्तलिफ है, उनकी मॉर्निंग मीटिंग होती है, उनकी जो शो एंड टेल एक्टिविटी होती है, उनकी अपनी एक्टिविटीज है, उसके बेस करके बच्चों की स्किल डेवलपमेंट होती है और एक्टिविटीज की डिजाइन होती है। और वैसे भी आपने जितने रिकॉर्ड रजिस्टर्स देखे हैं, आपको कहीं से भी ऐसे लगा कि इसमें प्री का कुछ वो इसमें एंटर हो सकता है? ठीक है मैम, असल में हमारे मुझे ये कंफ्यूजन थी। और मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास सीसीए इंचार्ज है वो जूनियर और मिडिल से, मतलब हमारा स्कूल मिडिल तक, तो वो जूनियर या मिडिल से कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या मिडिल से हो?
कहीं से भी कर सकते हैं। वो स्कूल की डिस्क्रिप्शन है, जिसको वो समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है और ये सारा कुछ वो मैनेज कर सकता है, ही और शी शुड बी। आपके स्कूल में अभी तक सीसीए कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट नहीं हुआ? मैम मैं सीसी कोऑर्डिनेटर हूँ, लेकिन मैम ने ये कहा है कि जो प्री वाली टीचर हैं वो जो है ओवरऑल सारा चीज वो देखेंगी। तो फिर अब ये कंफ्यूजन थी कि रजिस्टर मैंने मेंटेन करना है या प्री वाली टीचर ने मेंटेन करना है। जिसकी कोऑर्डिनेशन या और मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हैं और जो एक्टिव है इस चीज में, वो सीसीए कोऑर्डिनेटर जो भी, चाहे वो जूनियर से है, चाहे वो मिडिल से है, चाहे वो सीनियर से है, वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। थैंक यू मैम। जी मिस सबीला में। So this is the last question we are taking. Ms. Sabila Mehmood. Madam, Assalamu alaikum. From APS Iqbal AEC Center, Noshara, Madam Sabila from senior section is speaking. From this side, I having a certain queries. Since yesterday, I just only got a kind of learning that only one CCA coordinator should be from each branch of APS Iqbal, APS, sorry. But madam, here I having a kind of confusion. Yesterday I talked to my principal that only the requirement is one CCA coordinator, but he said me that no, we have to go with 4 CCA coordinators for each section. So now, right now, I checked my AIS. Even there, so not a kind of authority is there from the system side, I mean APSACS, that I have to enter all the data from the senior sections. So how it possible that now the principal is only and only so like to carry with 4 coordinators all the AIS, CCA activities and all the kind of the clubs and whatsoever. But now that the requirement is only one CCA coordinator. So how okay, it I've got your query. Are you from Iqbal? Yes, please, ma'am. Okay, I'll talk to your principal. Right. Okay, it would be, madam, it would be your kind and humble cooperation with us. Later. So as per policy, इस वक्त पूरे स्कूल का एक ही CCA coordinator होगा. ठीक है, वो हम उसको नहीं कर सकते. तो मैं प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, थैंक यू. चलिए अब चैट पे हम देख लेते हैं कि कुछ YouTube पे अगर क्वेरीज हैं. ये वाला क्वेश्चन गैरिजन बैंक का ये इट हैज ऑलरेडी ये आंसर हो चुका है. ये कुछ आगे ऊपर से ये ऑलरेडी हो चुका है. प्लीज ये जो उनकी क्वेरी है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लब एक्टिविटीज एंड इंटरनल सीसीए प्लान एक्टिविटीज, प्लीज रेफर टू द फाइनल टू द पॉलिसी हैंडबुक. उसमें बहुत क्लैरिटी से सब कुछ लिखा हुआ है. प्लीज रीड दैट. नो, वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड जी स्पेस दी हुई हमने हिस्ट्री के अंदर और उसमें हमने बता दिया only 2 to 3 relevant photographs for each activity to be pasted and rest of the photographs to be kept in the soft form with the CCA coordinator. Principal Hamza girls, we have communicated that CCA will not be conducted in second term. Kindly clarify if it's applicable in middle wing. No. It for senior wing only. मिडिल विंग का तो कैलेंडर चेंज नहीं हुआ ना, वो तो एज पर रूटीन जा रहे हैं. चेंज हुआ है एकेडमिक सेशन सीनियर स्कूल में जिसमें एसएससी और एचएसएससी इन्वॉल्व है, तो उन्हीं के लिए भी एप्लीकेबल है. ये ऊपर वाला क्वेश्चन इट इज ऑलवेज most of the queries have already been addressed. जी most of the queries have already been addressed. तो हमने YouTube का लिंक शेयर कर दिया आर्टिस्ट के साथ, तो आप इस सेशन को अगेन देख सकते हैं. ठीक है, व्यू कर सकते हैं. पढ़ा नहीं
Sorry, no. चलिए YouTube पे ऐसा ही देख लेते हैं. There is any YouTube query पे. that has not been answered as yet. There's no YouTube. I think we are good to end. Yes, thank you so very much everyone for staying engaged और आप लोगों की सबकी queries बहुत pertinent थी जिसकी वजह से बाकी लोगों को भी I hope सब maximum ambiguities जो हैं वो resolve हो गई होंगी. Still if you have any confusion और आपको handbook पढ़ने के बाद भी कोई ऐसी चीज लगती है कि जिस पे आप अभी तक satisfied नहीं है, you want more clarity, you can always get back to research and holistic development department through email or through your RD or principal. So we are always there to help you. We are always there to assist and explain you if there is any confusion. बेहतर यही है कि confusion को पूछ लिया करें बजाय इसके कि आप wrong data entry करें या wrong information जो है उसके अंदर डालें. उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना वो purpose आपके लिए serve होगा ना हमारे लिए serve होगा. So thank you so very much. I wish you all the best for your future endeavors and for the current academic session. Good luck and thank you. Allah Hafiz. इसके बाद स्पोर्ट्स का सेशन है वो जी, बता दो, इसके 10 बाद minutes की break. so after 10 minutes break there is a session on this planned from the exam department regarding sports activities और इसी लिंक के थ्रू वो सेशन कंटिन्यू होगा. तो प्लीज जो आपके PTIs हैं और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं they should join the same link and the session through the same link after 10 minutes. See you in 10 minutes. Thank you.
Assalamualaikum everyone. Am I audible to you? Please raise your hand. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the APSACS Sports Program Orientation Session for 2023 and 24. I am Mariam Adil, Deputy Director Examination in APSACS and Head of Sports Program across the country. So this is the online facilitation session for the sports staff. Actually, we are going to share with you the few things that are very important and specific for this particular year. So the agenda of today's session is to share with you the revised sports plan, share with you the updates that have been incorporated in the sports policy booklet, sports events, APSACS sports events that are supposed to be held during the session 23-24 and upcoming FBIC sports competition for this particular year. So coming towards the first main part of the session, which is APSACS sports plan, you all know that there is a slight change in plans. Previously, we have been holding 15 games per year across the country. However, for this particular year, we have changed the plan. The main reason for this change of plan is the FBIC notification. You all know that FBIC has shifted the examination slot from end of April to somewhere in March. So because of that huge shift of 5 to 6 teaching weeks, we have to reconsider the sports program in order to provide the ample time period for the syllabus coverage at senior school level. So this is the first and foremost important case, which we were supposed to consider, and we have to reduce the sports. Secondly, in order to ensure the coordination among the schools for the smooth conduction of competitions, we have also reduced it to the certain extent. In our letter, we have shared the necessary information and details, and we have also provided you with the format to share with us the post-event report. The instructions of FBIC events and preparation and participation guidelines have also been shared through the notification directly shared by Federal Board. So coming towards a reduced sports plan for this particular session, you all know that instead of holding 15 games, now we are working on 11 games only. And these are the games which are totally in line with the Federal Board, upcoming Federal Board competitions. The letter of the comprehensive or reduced or condensed sports plan for session 23-24 has already been shared with all APSNCs on 15th of August 2023. It should be there with you. I am expecting that you have gone through it. You must be very clear about it. If you have any concern regarding the condensed sports plan, you can always write your question in the chat box. And at the end, we are going to share the response on that. It is noteworthy to mention over here that the list of the events, the 11 sports that we have mentioned in the condensed sports program, these are the sports which are in line with the upcoming Federal Board sports competition. Board is going to hold the competition somewhere in October, November, and December. And these are the events, the 11 games, which we are holding just to identify the students before their competitions. The format which is shared in front of you, this has been devised for the inter-school sports competition, which you are supposed to record and share with us through the email. यहाँ पर अगर आप इस format में देखें तो there are 5 columns. हर school इसको maintain करेगा और फिर अपने RD के साथ share करेगा, and RDs in return are supposed to share the same format with the secretariat. RDs का काम अपने पूरे region की sports का data में forward करना है. Whereas schools will be forwarding their particular games, particular sports, or particular participation to their respective RD. So अगर इस format को आप देखते हैं तो आपके पास first column में sports है. As a school, आपने कौन-कौन सी sports में participate किया, host कौन सी की या किसने उसको host किया, वो आप hosted by में लिखेंगे. And winner, किस में आप first रहे, किस में आप second रहे और किस वाले game में आपने third position ली. So with the name of the school, you will be forwarding it to your RD. Secretariat को या exams department को जो report चाहिए होगी, that is at the end of RD.
आरडी तमाम स्कूलों का की रिपोर्ट कार्ड या तमाम स्कूलों का डाटा इकट्ठा करने के बाद अपने रीजन की एक रिपोर्ट हमें फॉरवर्ड करेंगे फॉर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। इस फॉर्मेट को फिल करने के लिए ऑल द स्पोर्ट्स दैट हैव बीन हेल्ड इन द रीजन at inter-school level, they'll be mentioned in column 1. किस स्कूल ने कौन सी स्पोर्ट को होस्ट किया, स्कूल का नेम hosted by के सामने वाले कॉलम में मेंशन किया जाएगा और विनर्स, रनर अप एंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स में भी स्कूलों का नाम लिखा जाएगा। से फॉर एग्जांपल क्रिकेट बॉयज है, इट इज होस्टेड बाय APSNC सरगोदा। विनर हमारे पास अब जो भी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस में, दैट मे बी आजादी सरगोदा, रनर अप मे बी एनी अदर स्कूल एंड थर्ड पोजीशन मे बी एनी अदर स्कूल। सो वो इंटर रीजनल 30 कोर के आपस में जो स्कूल्स कंपटीशन करेंगे उनका रिजल्ट 30 कोर हमें इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करेंगे। सो इज द केस विद एवरीवन। और ये बात ज़हन में रखिएगा कि इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन हर कोर में करवाना जरूरी है, चाहे वो 5 कोर हो, चाहे वो 30 कोर हो, चाहे वो 12 कोर हो। हर रीजन अपने स्कूलों के दरमियान में ये कॉम्पिटिशन्स करवाकर हमारे साथ डाटा शेयर करेंगे, ये मैंडेटरी है। इसके बियॉन्ड दैट इज इंटर रीजनल एंड इंटर जोनल चैंपियनशिप, दैट इज नॉट मैंडेटरी। हम आपको नहीं कह रहे, बट इफ यू थिंक लाइक कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और इफ यू थिंक लाइक कि आपको सिलेबस कवरेज में इशू नहीं हो रहा और आप इंटर रीजनल किसी भी अपने जोन की टीम के साथ करवाना चाहते हैं, you can always proceed with that. It is at your discretion. It is at the discretion of your principals, your students, parental consent. हमें इसमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हम बच्चों के एकेडमिक्स को सामने रखते हुए फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर हमने इसको थोड़ा सा होल्ड कर लिया है, इस कंपटीशन इंटर रीजनल और इंटर जोनल। So I am expecting 19 into reports, one from each region regarding the inter school sports competition. And RD is requested to forward the result to A&E department via email within 10 days after the conduct of the event. As far as conduct of the event is concerned, हमें कई 2-3 जगहों से ये एक request for receive हुई है कि अगर वो अपने events को +-1 भी करना चाहें तो देखें, ये इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन है, आपके रीजन के अंदर ये हो रहा है, इसमें कोई और बाहर का रीजन या बाहर का स्कूल या बाहर का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा। सो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। अगर आपको लगता है कि वेदर की कंडीशन की वजह से या किसी XYZ और कंडीशन की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से या पेरेंटल कंसेंट की वजह से आप इवेंट को हफ्ता 10 दिन आगे पीछे करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट। अपने RD के साथ अपना प्लान, अपनी एप्रीहेंशंस या सजेशंस शेयर करें एंड RD इन रिटर्न हमसे अप्रूवल लेने के बाद इवेंट को विद अ शिफ्ट ऑफ 10 to 15 डेज +- करके बिल्कुल कंडक्ट करा सकते हैं। मगर ये बात ज़हन में रखिएगा, कोशिश करें इसको फर्स्ट हमसे पहले वाइंड अप करें, क्योंकि सेकंड टर्म में हमारा फुल फ्लेज फोकस बच्चों की एकेडमिक्स होगी। हम वहां पे स्पोर्ट्स या CCA इवेंट को मैंडेटरी नहीं कर रहे। सो जब अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स सेकंड टर्म तो पेरेंट्स की तरफ से आपको बहुत बड़ा बैकलैश है, तो इसलिए कोशिश करें कि फर्स्ट टर्म में सारी स्पोर्ट्स के इवेंट को आप वाइंड अप करें। दिस इज द अपडेटेड APSACS पॉलिसी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने इस पॉलिसी को डिटेल में पढ़ा होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी को चैप्टर वाइज इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू द स्पोर्ट्स है, सेकंड चैप्टर इज अबाउट द पॉलिसी इन व्हिच विजन, मिशन, द challenges that we have faced over the years, objective of the sports program, all the stakeholders which are involved in sports, the categories that we have introduced in the sports, instructions regarding the sports coordinator, physical instructors and coaches, budgeting and funding facilities, और इसके अलावा result compilation and sharing of results and pictorial evidences with APSACS secretariat। हमने तमाम चीजों को proper headings के साथ spell out किया हुआ है। So अगर आप लोग इसको बैठकर तसल्ली से पढ़ेंगे तो I don't think so कि अब कोई भी मैटर या कोई भी इंडिकेटर ऐसा है जो कि अनटच्ड रह गया हो या अनकवर्ड हो या उसमें भी क्लैरिटी ना आ रही हो। हमने स्पोर्ट्स को प्रॉपर 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले भी ये तीनों कैटेगरीज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इनको हमने डिफाइन नहीं किया हुआ था। Now we have 3 proper programs running under the heading of APSACS sports program. The first one is the recreational sports. These recreational sports are the events or the sports or the games that student can take part any time of the year during their games period or even when they are free after the school time or during the weekends. So ये उनकी recreational पे है, इसमें कोई competition involved नहीं होगा, ना ही इनके कोई result होंगे।
आप स्कूल स्पोर्ट्स डे कराते हैं, आप गेम्स पीरियड होते हैं, आपका फ्री पीरियड होता है, तो यहाँ पे वो तमाम स्पोर्ट्स, तमाम गेम्स या एक्टिविटीज जो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए होंगी वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। Another important thing to mention over here is that recreational की कुछ हमने आपको एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेस, अपने जो आपके पास इक्विपमेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन द स्पोर्ट्स और गेम्स दैट हैव बीन मेंशन। ये बच्चों की, क्योंकि उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी साइकोमोटर स्किल्स को बिल्ड और डेवलप करने के लिए ये स्टेप उठाया गया, तो इसमें आप अपनी फैसिलिटी को रखते हुए सामने हमेशा इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। The second part is physical fitness activities. As you all know that कोविड के दौरान स्कूल्स लॉकडाउन हो गए थे, बहुत सारे बच्चों को फिजिकल फिटनेस का इशू क्रिएट हुआ, जिसके बाद हम लोगों ने फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करवाई। इट्स नॉट अबाउट द क्लोजर और लॉकडाउन ऑफ द स्कूल्स ओनली। जब भी आपके बच्चे घर पर होते हैं, इवन योर टीचर्स, यू योरसेल्फ, योर एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम लोग जो कि एकेडमिक्स में इन्वॉल्व है, उनकी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस इस चैप्टर में और इस हेडिंग के अंदर मौजूद है। इसमें एक्सरसाइजेज हैं, इसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है जो ओवरऑल फिजिकल बिल्ड या स्ट्रेंथ को एनहांस करती है। सो काइंडली इसको इंश्योर कराएं। ड्यूरिंग द वीकेंड्स, समर वेकेशन में वी हैव गॉट एक्सीलेंट रिस्पांसेस फ्रॉम द रीजन। बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्म किया। वी हैव रिसीव्ड द वीडियोस, वी हैव रिसीव्ड देयर इमेजेस, और हमें बहुत खुशी हुई कि ये प्रोग्राम रियलिस्टिकली इंप्लीमेंट किया गया है बहुत सारे रीजन्स। सो इट इज एट योर आप कह लें कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पीटीआई और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर कि आप इन फिजिकल एक्टिविटीज को प्लान करके लेकर चलें, और अपने समर स्लॉट या विंटर स्लॉट या जब कभी भी कहीं पर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की वजह से लॉकडाउन होता है तो बच्चों की फिजिकल फिटनेस को कॉम्प्रोमाइज ना हो, बिकॉज एन एक्टिव माइंड इज द अलर्ट माइंड, और वो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू ही हो सकता है। द थर्ड पार्ट इज द चैंपियनशिप गेम्स। ये पर्टिकुलर वो गेम्स हैं जिसमें जोनल चैंपियनशिप या एपसेक्स चैंपियनशिप ये करवाना मैंडेटरी होगा हर साल। इसके अलावा आप इंटर स्कूल या इंटर हाउस लेवल के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन्स करवाना चाहते हैं, साइकिलिंग करवाना चाहते हैं, स्विमिंग करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास फैसिलिटीज है, आपके पास एवेन्यूज हैं, आप बिल्कुल करवा सकते हैं। पर चैंपियनशिप के लिए यही पर्टिकुलर 14 to 15 गेम्स होंगी जिसमें सारे के सारे जोन्स आपस में compete करके वन चैंपियन डिसाइड करेंगे। सो इसको आपने ध्यान में रखना है, फाइनल कॉम्पिटिशन्स में चेंजेस नहीं होंगे। जी नेक्स्ट वन। इसी चैप्टर में पॉइंट 2.7 एंड 2.10 2.11 में इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं फॉर द स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर और ट्रेनर जो पीटीआईज हैं और कोचेस के लिए। व्हाट टाइप ऑफ यूनिफॉर्म दे आर एक्सपेक्टेड टू वेयर ड्यूरिंग द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इवेंट्स। इसके अलावा किस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग उन्होंने करनी है, किस तरह से रिजल्ट हमारे साथ सेक्रेटेरिएट के साथ शेयर करेंगे, एंड व्हाट टाइप ऑफ पिक्टोरियल एविडेंसेस आर मैंडेटरी। सॉफ्ट कॉपी हमें चाहिए होती है, हार्ड कॉपी इज नॉट रिक्वायर्ड। प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं उसके साथ आप जो आपकी फोटोग्राफ्स हैं उनकी हार्ड कॉपी मत शेयर करें। हमारे साथ सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दें, हम ईयर आफ्टर द ईयर रीजन वाइज और इवेंट वाइज आपका रिकॉर्ड फाइल्स में मेंटेन करें। सो हमें सिर्फ सॉफ्ट कॉपी चाहिए होती है। These are the games for the championship, APSACS championship events, and these are cricket both for girls and boys, hockey for girls and boys. स्क्वॉश की जगह पर हमने वॉलीबॉल इंट्रोड्यूस करवा दिया है, उसकी रीजन भी मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। We have got table tennis for girls and boys, badminton for girls and boys, football for boys only, netball for girls only, basketball for boys only, and athletics for both girls and boys. एथलेटिक्स के अंदर भी हमने टग ऑफ वॉर अब इंट्रोड्यूस करवाई है। पिछले 6 इवेंट्स वही हैं जो कि ओवर द इयर्स होते आ रहे हैं, पर टग ऑफ वॉर को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद फेडरल बोर्ड लेवल पर इस कंपटीशन का होना है और हमारे बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं। सो वी नीड टू हैव और वी वांट टू हैव द सेम कॉम्पिटिशंस इन APSACS चैंपियनशिप इवेंट्स एज वेल। जी वॉलीबॉल हमने इंट्रोड्यूस करवाई है इंस्टेड ऑफ स्क्वॉश। उसकी रीजन मैं आपको बता दूं दैट वी हैव रिसीव्ड द एप्रीहेंशंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स that they are not provided with or they do not have the facility of squash courts in their regions, जिसकी वजह से बच्चे बहुत डिसएडवांटेज पे हो जाते हैं। और जोनल चैंपियनशिप में वही हर साल 2 या 3 रीजन्स होते हैं जिनके बच्चे आगे टॉप पोजीशंस पर या डिफरेंट फोरम्स तक जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई आप स्क्वॉश करवाएं जरूर इंटर हाउस में, जहां जहां फैसिलिटीज हैं वहां पे इंटर हाउस इंटर स्कूल लेवल के ऊपर आप बिल्कुल करवाएं। आपके बच्चे को प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि जब कभी भी लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर कोई अपॉर्चुनिटी या इवेंट्स आते हैं तो आपके पास बच्चा प्रिपेयर्ड हो, उसके पास फैसिलिटीज हैं, उसके पास एवेन्यूज मौजूद है, सो उसको कंडक्ट करवाते रहे। लेकिन चैंपियनशिप की गेम्स की लिस्ट में से
we have excluded it and we have added volleyball. और volleyball क्योंकि फेडरल बोर्ड कॉम्पिटिशन्स में ये सेंट्रलाइज कॉम्पिटिशन होता है ओवर इंटर डायरेक्टरेट और इंटर कॉलेजिएट लेवल पर, दैट इज व्हाई अब हमने वॉलीबॉल को अपने चैंपियनशिप प्रोग्राम में भी ऐड कर दिया. Now this is related to the facilities that schools and RDs are supposed to ensure. आप जानते हैं इस साल चैंपियनशिप नहीं हो रही, so अभी जो मैं आपके साथ चीज शेयर करूंगी that is related to inter-school sports competition. During these inter-school sports competition, both medical and security facility will be provided and should be provided by the host school. ये उसकी responsibility है. क्योंकि वहां पर कंपटीशन हो रहा होगा तो फर्स्ट एड बॉक्स और फर्स्ट एड बॉक्स के अलावा जो नेसेसरी मेडिकल स्टाफ आपको रिक्वायर्ड होता है 1 into नर्स और 1 into डॉक्टर, दैट शुड बी देयर एट दैट प्लेस. नर्स जरूर रखिएगा पर्टिकुलरली फॉर द इवेंट्स जहां पर गर्ल्स के इवेंट्स होते हैं. सिक्योरिटी में भी जहां पर जो होस्ट स्कूल होगा वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा. हाउएवर जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है दैट विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्कूल. वो ट्रांसपोर्टेशन को खुद अरेंज करें. अकोमोडेशन इस साल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इंटर स्कूल स्पोर्ट्स के कंपटीशन हो रहे हैं. वो इवेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद दे मूव बैक टू देयर पेरेंट स्कूल. हाउएवर जहां कहीं पे बोर्ड के कॉम्पिटिशन्स आते हैं या नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई कंपटीशन आता है वहां पे बच्चा पार्टिसिपेट करता है, इन दैट केस अकोमोडेशन ऑफ दैट चाइल्ड विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द आरडी. जो पार्टिसिपेटिंग जोन का आरडी होगा या रीजन का आरडी होगा वो, और उसकी फॉर्मेशन या गवर्निंग बॉडी बच्चे की मिसिंग, रूम बुकिंग या अकोमोडेशन के लिए रिस्पांसिबल होगी. वो फैसिलिटेट करेंगी बच्चे को. और इन दिस रिगार्ड यू कैन ऑलवेज कोऑर्डिनेट विद APSACS सेक्रेटेरिएट. नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन के लिए वी आर देयर टू फैसिलिटेट यू हर तरह से, चाहे वो आपके पास फाइनेंसेस में हो, चाहे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते. Now coming towards the other facilitation that we are providing centrally to all the regions. This is with reference to the awards and honors. Championship जब भी होगी, that is in year 24, तो winning teams will be awarded with APSACS championship trophy, gold medal, 1 for each player, achievement certificates, 1 for each player, and token of appreciation for the winning coach and PTI. Runner-ups will be provided with a silver medal, 1 for each player, and appreciation certificate for each player. Third position holder will also be provided with a medal, which will be bronze, and a certificate, 1 for each player. The new development is that previously 3 साल consecutive एक गेम को जीतने के बाद the trophy was handed over to the winning zone. लेकिन अब हमने इसको रिवाइज कर दिया है. रिव्यू करने के बाद trophy will now be handed over to the winner zone on annual basis. आप जीतेंगे इवेंट, ट्रॉफी आपकी हो जाएगी. However, आप जानते हैं कि एक जोन के अंदर मल्टीपल रीजन्स खेल रहे होते हैं, मल्टीपल स्कूल्स की टीम्स होती है. So the region with the maximum participants or students in the zonal team will get the trophy for maximum time display. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा भी किसी और स्कूल का है तो वो ट्रॉफी वहां भी डिस्प्ले होने के लिए जाएगी. लेकिन इट विल ऑल डिपेंड कि पार्टिसिपेंट किस रीजन या किस स्कूल के सबसे ज्यादा हो. Now coming towards the second most important part of APSACS sports program, which is the hockey. In order to revive the passion for the national game among the students of APSACS, हमने Pakistan Hockey Federation के साथ in collaboration with their coaches, we have launched the hockey program in 2017. और उस ड्यूरेशन में हमने पहले लोकल और फिर इसके बाद बाकी रीजन्स के लिए मल्टीपल ट्रेनिंग कैंप्स करवा चुके हैं. हर साल एक स्कूल कोड रीजन का या मल्टीपल स्कूल्स जो एक ही रीजन में फॉल कर रहे होते हैं फॉर द कोड एंड 1 फॉर द वार्म रीजन हम ट्रेनिंग कैंप्स करवाते हैं. And as a result of these training camps, alhamdulillah, for 2 consecutive years, our girls in hockey, they have been selected by the Inter-Board Sports Committee at national level, and they have participated in the behalf of national game in multiple events at international forums. Last year, they went to Iran. वहाँ पर उनके 5 friendly matches हुए थे. All of them were won by federal board, जिसमें हमारी 3 लड़कियां थी. And one of the player was given the award of the best hockey player. लास्ट ईयर ओमान में ट्रेनिंग कैंप हुआ था जिसमें हमारी लड़कियां 3-4 लड़कियां गई थी और उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था. एंड अगेन दे वन द अवार्ड ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन हॉकी इन ओमान. सो दिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ट्रेनिंग कैंप्स. आपके रीजन में जब कभी भी ये ट्रेनिंग कैंप करवाया जाता है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, काइंडली इंश्योर करवाएं कि वो टैलेंट जिसके अंदर हॉकी का पैशन मौजूद है या जो हॉकी में एक्सेल करना चाहते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए. आपके टीचर्स जो आपके पीटीआईज हैं
उनको इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर भिजवाएं ताकि वो ट्रेनिंग से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट ड्रिल्स, टैक्टिक्स और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कोचेस ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वो उसको रिसीव करें और इंश्योर करवाएं ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग्स विद इन दिस। जी नेक्स्ट। Now coming towards the chapter 5 of the policy booklet, which is the physical fitness activities. In this, as I've already told you, multiple things have been shared with you along with the links, e-links, जहाँ पे बच्चों की suitable exercises age wise और level wise आपको की गई हैं। इसके अलावा outdoor activities, camping और family games के से related भी instructions यहाँ पर मौजूद हैं। इनको कैसे रिकॉर्ड करना है, इनकी रिपोर्टिंग आप सेक्रेटेरिएट को कैसे करेंगे, 5.6 में आपको इसको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। Appreciation certificate will be awarded to those, both the students and PTIs who will follow the instructions in true letter and spirit. So अभी भी जो समर कैंप से रिलेटेड हमें बहुत सारे फीडबैक्स रिसीव हो रही हैं, वहां से हमें अच्छा खासा आइडिया हो रहा है कि किस स्कूल ने इसको ट्रू लेटर और स्पिरिट में फॉलो किया था। We are maintaining that data और इंशाल्लाह at the end of CP1 in WOM region, certificate will be forwarded to the concerned students. Now coming towards the biennial sports plan, yes, you must be very much aware of this thing that at the start of the session we rotated a proposal that instead of holding 15 competitions in a single year, why not to spread over these 15 competitions over the period of 2 years, making sure that maximum participation from the student side is ensured as well as the academics of the students are not compromised. आप जानते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स के, उनकी बहुत बड़ी अप्रीहेंशन यही होती है कि बच्चों की एकेडमिक्स इफेक्ट होती है। एंड एज इन 15 गेम्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मूविंग अक्रॉस द कंट्री, उनकी मैनेजमेंट, उनकी रिसोर्सेज का इंतजाम करना, अकोमोडेशन, फाइनेंसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर कंसिडरेशन। सो कीपिंग दैट इन माइंड, हमने आपको प्रपोजल फॉरवर्ड किया था फॉर बाइनल स्पोर्ट्स प्लान एंड विद द रीजनल इनपुट रिसीव्ड इट हैज बीन अप्रूव्ड। सो फ्रॉम सेशन 24-25 एंड ऑनवर्ड्स biennial sports plan will be incorporated. 2 साल के अंदर ये स्पोर्ट्स दी जाएंगी। ये सैंपल प्लान आपके साथ शेयर किया गया है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज अ सैंपल प्लान। हो सकता है अगले साल जब आपके पास ये सेशन 24-25 और 25-26 का प्लान आए तो दैट मे वेरी फ्रॉम दिस। इवेंट्स थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस साल में ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा बाइनल का प्लान। इस साल रिड्यूस्ड स्पोर्ट्स प्लान है, इसमें सिर्फ 11 इवेंट्स। ठीक है, सो आई थिंक एंड आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन अगर आपको है या कोई बात अभी भी क्लियर नहीं हो रही तो चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी आप अभी डाल दें। एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस। जी, बिसाइड द बाइनल स्पोर्ट्स प्लान हमने 5 आपके लिए फैसिलिटेशन पॉइंट्स भी उसमें ऐड किए थे। नंबर 1, बाइनल बेसिस के ऊपर जोनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर अलॉट किए जाएंगे। ये जोनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हर जोन से एक ही होगा, 1 मेन कोऑर्डिनेटर जो कि अपने जोन के पीटीआईज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और इन रिटर्न हमारे साथ यहाँ A&E डिपार्टमेंट में मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेगा ताकि हर तरह के इवेंट की अपडेट हमारे पास मौजूद रहे। इसके लिए जो मेरी जोनल कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर के साथ कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन रहेगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल या नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए रहेगी। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे मालूम होता है कि इस वक्त एशियन गेम्स आ रही हैं और एशियन गेम्स में हमें हॉकी का प्लेयर्स चाहिए, तो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस जोनल कोऑर्डिनेटर के साथ होगी कि जी आपके जोन्स में हॉकी के कौन से बेस्ट प्लेयर्स हैं, काइंडली फॉरवर्ड विद द डाटा। सो जोनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर वो पूरे साल में 2 सालों के लिए अप टू डेट रहेंगे, अपने पीटीआई के साथ कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, ऑफ एंड ऑन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जाएंगे, विटनेस करेंगे और जो उनके बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनमें किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टैलेंट मौजूद है उसका डाटा कंपाइल करते हैं। द बेस्ट जोनल स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर will be awarded with the certificate as well as the opportunity to get trained at national or international level. मैं ये भी आपको इंश्योर करवा रही हूँ यहाँ पर कि जो बेस्ट कोऑर्डिनेटर होगा उसको मैं जहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म पे भी मुझे उसकी ट्रेनिंग के लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसका नाम आगे फॉरवर्ड करवा के उन्हें ट्रेनिंग दिलवाऊंगी। लेकिन बेस्ट से मुराद ये है कि उनकी कोऑर्डिनेशन विद देयर पीटीआईज एंड देयर कोलैबोरेशन विद APSACS सेक्रेटेरिएट will be the best one. The third point is instead of waiting for 3 consecutive years, trophy will be handed over on an annual basis. I have already told you. The fourth point is that preparation for external sports. इस साल के लिए ये खास तौर पे बात है कि फेडरल बोर्ड, प्रोविंशियल गेम्स, नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स या किसी भी इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन के लिए this year you, the school administration, the PTIs, the sports coordinator
You people are responsible to prepare your students accordingly. उसके लिए जरूरी नहीं है कि सेक्रेटेरिएट से आपको खत आए कि अब आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अभी भी अपने स्कूल्स के इवेंट्स में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन को इतने अच्छे तरीके से कराएं कि यहीं से आपके पास टैलेंट सामने आ जाए और आप इन बच्चों के ऊपर फर्दर अगर आपने किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग्स करवानी है, प्रैक्टिस करवानी है, तो फिर आप इन बच्चों की प्रैक्टिस इंश्योर करवा सकते हैं। The last point is that additional marks will be provided to all the APS and Cs whose students will participate in external competitions. यहाँ पर इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, इट्स नॉट अबाउट अचीवमेंट, इट्स नॉट अबाउट द पोजीशन इन एक्सटर्नल स्पोर्ट्स, इट इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेशन। अपने बच्चों को एनकरेज करें, उन्हें फैसिलिटेट करें कि कोई भी अगर उनको एवेन्यू मिलता है, उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर या इवन लोकल या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी, तो अपने बच्चों का नाम या उनका डाटा आगे फॉरवर्ड करें, उन्हें ये चांसेस प्रोवाइड करें कि वो इस फील्ड में भी एक्सेल करें। क्योंकि आप ये याद रखें कि जो इंसान की लर्निंग की डोमेन्स होती हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जिसको अभी आप लोग समझते हैं, उसकी 3 डोमेन्स हैं। कॉग्निटिव डोमेन जिसमें हम उनके पेपर्स लेकर चेक कर लेते हैं, इफेक्टिव डोमेन जिसमें उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट आ जाती है, एंड द थर्ड वन है साइकोमोटर डोमेन जिसमें उन बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन, वो प्रैक्टिकल जो उनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होते हैं, साइंसेज में होते हैं, वो भी शामिल है और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी शामिल है। इसमें भी उनकी डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है ओवरऑल बैलेंस्ड पर्सनालिटी होने के लिए। सो इन चीजों को खत्म मत करें, इनको बंद मत कर दे, स्पोर्ट्स को हमने वाइंड अप नहीं करना, स्पोर्ट्स मौजूद रहेंगी और आप अपने लेवल पर उसे इंश्योर करवाते रहे। जी नेक्स्ट वन, जी नेक्स्ट वन, दीज आर द 11 इवेंट्स जो कि इस सेशन में 23-24 में होने हैं। दीज आर जस्ट 11 गेम्स। अगर आप बाकी एथलेटिक्स में आ जाएं तो एथलेटिक्स में दे हैव बीन फर्दर रिड्यूस्ड, इंस्टेड ऑफ 7 गेम्स सिर्फ 4 गेम्स हो रही हैं, और वो भी उनमें से 3 रेसेस से रिलेटेड है और एक टग ऑफ वॉर है। और ये वाली चारों गेम्स क्योंकि फेडरल बोर्ड लेवल पर भी हो रही हैं, सो हम सिर्फ इन्हीं को इंश्योर करवा रहे हैं अपने एथलेटिक्स के कॉम्पिटिशन में इस साल के लिए। बाकी बेशक आप इंटर हाउस लेवल के ऊपर बाकी कॉम्पिटिशन्स करवाते रहे, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। जहन में सिर्फ ये रखना है कि सीनियर स्कूल के बच्चों की एकेडमिक्स इफेक्ट ना हो। टिल क्लास 8 आप इसमें फर्दर गेम्स ऐड कर सकते हैं इवन इन इंटर स्कूल लेवल। मैं आपको सीनियर के लिए सिर्फ बता रही हूँ, सीनियर के बच्चों को हमने एकेडमिक्स में फैसिलिटेट करना है फॉर दिस सेशन। जी दिस इज द टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर द स्पोर्ट्स। एकेडमिक कैलेंडर में ऑलरेडी ये सारी डेट सारे वीक्स एलोकेटेड हुए हैं। ग्रुप 3 के स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर में एक्सपेक्टेड है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, यू कैन हैव अ रिलैक्सेशन ऑफ +-10 days keeping in loop your RD and APSACS secretariat. But for rest of the schools till class 8 उसमें चेंजेस नहीं करेंगे आप, वो जैसा प्लान हुआ हुआ है उसको उसके अकॉर्डिंगली ही करेंगे। जी again reduced sports plan is effective for session 23-24 and only regular sports will be implemented from next session and onwards. बार-बार इसलिए बता रही हूँ ताकि ये चीज आपके जहन में बैठ जाए और किसी किस्म की कोई हाँ जी कोई कंफ्यूजन ना हो या कोई inconvenience ना cause। जी next one, coming towards the last part of the presentation, that is the federal board sports. This notification has been shared with all of you through the WhatsApp as well as through the letter that is most probably on 21st of August. इस इवेंट को अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अक्टूबर में गर्ल्स और बॉयज के इंटर स्कूल और इंटर डायरेक्टरेट लेवल पर टेबल टेनिस और बैडमिंटन की कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं। सो इन 2 इवेंट्स को आप अपने लेवल पर कंडक्ट कराकर सितंबर में, दैट इज बाय 10th of September, या अगर आप 10th नहीं करते तो चले 15th of September, डाटा मेरे पास आपके रीजन का इंटर स्कूल स्पोर्ट्स का पहुंच जाना चाहिए, ताकि जब बोर्ड में कोई डाटा फॉरवर्ड करना हो या बच्चों की सिलेक्शन करनी हो तो हमारे पास हर रीजन का विनिंग स्कूल या जो विनिंग टीम होगी वो हमारे पास मौजूद। फिर उसमें से फर्दर सिलेक्शन वो हमारी जिम्मेदारी होगी सेक्रेटेरिएट की कि हम चांसेस किसको प्रोवाइड करें। एक बात ध्यान में रखिएगा, पिछले 3 सालों से रावलपिंडी रीजन ही फेडरल बोर्ड लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। फेडरल बोर्ड के कॉम्पिटिशन सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए नहीं है, दीज आर फॉर द स्कूल्स व्हिच आर एफिलिएटेड विद फेडरल बोर्ड, और उसमें गिलगित भी आता है, उसमें कश्मीर भी आता है, उसमें कोयटा भी है, उसमें कराची, हैदराबाद, पनुआकिल, बदीन, कश्मीर, ये सारे रीजन शामिल है। सिर्फ पिंडी के लिए ये इवेंट्स नहीं हो रहे। सो अगर आपके पास आपके रीजन में आपके स्कूल में टैलेंट मौजूद है इन गिवन गेम्स में, और इंटर स्कूल में आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नजर आता है और आपको आप में एक फीलिंग आती है कि ये बच्चा अगर नेशनल लेवल तक या फेडरल बोर्ड लेवल तक जाए तो एपसेक्स के लिए प्राइड का हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है,
So in that case, you are requested to please forward the details of that particular student to us timely. अक्टूबर के इवेंट्स के लिए हमें सितंबर में डाटा चाहिए, that is by 10th सितंबर. नवंबर के इवेंट्स के लिए we need the data by 10th of October और दिसंबर के इवेंट्स के लिए we need the data by end of October. नवंबर का टाइम आपको इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन आ जाएंगे. काइंडली किसी किस्म का कोई इवेंट एग्जाम्स के दिनों में मत कंडक्ट कराएं. जिन लोगों ने आज तक फेडरल बोर्ड के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया उनके लिए 3 मेन बातें. नंबर 1, फेडरल बोर्ड में 2 लेवल पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर कॉलेजिएट एंड इंटर डायरेक्टरेट. इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स होते हैं कॉलेज लेवल पर, दैट इज फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, एंड इंटर डायरेक्टरेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं फॉर एसएससी लेवल, दैट इज फॉर 9th एंड 10th. इन दोनों लेवल्स के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं. सो आपने मुझे भी जब डाटा फॉरवर्ड करना है तो एसएससी और एचएसएससी मेंशन करके भेजना है कि दिस स्टूडेंट इज एट एसएससी लेवल एंड दिस स्टूडेंट इज एट एचएसएससी लेवल हु हैज बीन परफॉर्मिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन एनी गिवन स्पोर्ट्स. ठीक है, ताकि जब हमें बोर्ड में डाटा भेजना हो तो हमें लेवल मालूम हो उस टाइम के ऊपर, फिर इसमें टाइम भेजना. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो उसमें ये है कि थोड़े दिनों पहले से अबाउट 1 or 2 weeks अर्लियर स्पोर्ट्स कमेटी की एक मीटिंग हुई थी बोर्ड लेवल पर, जिसमें ये फाइनलाइज किया गया है कि जो बच्चे आउट स्टेशन से मूव करेंगे फॉर फेडरल बोर्ड कॉम्पिटिशन्स उनकी अकोमोडेशन या उनकी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी बोर्ड की जिम्मेदारी है. सो बोर्ड इज गोइंग टू फैसिलिटेट दैट. अगर फॉर एग्जांपल बोर्ड की तरफ से कोई डिले आता है या हमें लगता है कि बोर्ड अभी फिलहाल कमिटेड है, वो नहीं फैसिलिटेट करा, दिस इज माय प्रॉमिस विद यू कि APSACS सेक्रेटेरिएट ऐसे बच्चों को फैसिलिटेट करेगा. यू हैव द टैलेंट, यू आर सपोज्ड टू इन्फॉर्म अस. बाकी जिम्मेदारी फिर APSACS की हो जाए. ठीक है, लेकिन बच्चों को उनके टैलेंट के सामने के अकॉर्डिंगली आगे आने का चांस दें. ये आप लोगों ने अपने लेवल पर करवाना है और इंटर स्कूल के दौरान करवाना है. इन्हीं कॉम्पिटिशन्स में आप बेस्ट बच्चा सेलेक्ट करेंगे. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट इज, नेक्स्ट कीजिएगा, the cups, different types of events that are going to come in the upcoming years. उनमें पहला है यूरोपियन कप जो कि फुटबॉल और कैच बॉल के लिए है. ये ग्रीस में कंडक्ट होगा इन सितंबर. इस साल हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम अगले साल इंशाल्लाह इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे. सो अभी जब आप अपने रीजन में फुटबॉल के कंपटीशन करवाएं या अगले साल जब फुटबॉल के होंगे तो काइंडली अपने प्लेयर्स, जो आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनका डाटा हमारे साथ ऑफ एंड ऑन शेयर करते रहे ताकि हम एक APSACS की टीम बिल्ड करें जो कि फेडरल बोर्ड में जाके खेलेगी और फिर उसमें से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड की टीम बनकर यूरोपियन कप में जाएंगे. ये फेडरल बोर्ड लेकर जाएगा इस टीम को और हमारे बच्चे फेडरल बोर्ड में पार्टिसिपेट करेंगे अलॉन्ग विद द अदर डायरेक्टरेट्स. सेम इज द केस विद द ओलंपिक स्पोर्ट्स. ये ऑल स्पोर्ट्स हैं, जितने इवेंट्स हमारे हैं अप्रोक्सीमेटली इतने ही ओलंपिक गेम्स के हैं. ये कराची में सितंबर में होने जा रहा है. अगेन इस साल फेडरल बोर्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ड्यू टू एकेडमिक्स. अगले साल पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उन्होंने हमसे कहा है कि आप ऑफ एंड ऑन हमें डाटा शेयर करते रहे सारे स्पोर्ट्स के बेस्ट प्लेयर्स का, ताकि हम अपनी टीम टाइमली बना लें. द लास्ट वन इज द एशियन ओलंपिक्स. ये दिसंबर में मलेशिया में होने जा रही है और इसमें APSACS पार्टिसिपेट करेगा. इसमें भी तमाम गेम्स शामिल है. हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, टेबल टेनिस है, स्क्वॉश है, स्विमिंग है. सो इन गेम्स में अगर आपके पास टैलेंट मौजूद है, आपने बाय द एंड ऑफ अक्टूबर ये डाटा हमारे साथ शेयर करना है ताकि जब भी बोर्ड हमसे कोई डाटा मांगे हम उनको, हमारे प्लेयर्स रेडी हों, हमारा डाटा तैयार हो, हम फेडरल बोर्ड के में उनको फॉरवर्ड कर दें. वहां पे उनकी फर्दर सिलेक्शन होगी एंड फेडरल बोर्ड टीम विल पार्टिसिपेट इन द एशियन ओलंपिक्स इन दिसंबर 2023. इन इवेंट्स में डिसाइड जो इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं उसके अलावा साइकिलिंग भी शामिल है, कराटे है, मार्शल आर्ट्स है एंड स्विमिंग. सो इफ यू हैव अ टैलेंट इन योर रीजन, दो ये हमारे किसी इवेंट में भी शामिल नहीं है, APSACS की स्पोर्ट्स में शामिल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट मौजूद है तो आप इनका डाटा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सवाद की एक बच्ची ने अभी ताइक्वांडो में इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करके ब्रॉन्ज मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिया. पिछले साल एक बच्ची थी काकुल की, उन्होंने ताइक्वांडो में पार्टिसिपेट किया पर्सनल लेवल के ऊपर एंड शी गॉट द ब्रॉन्ज मेडल. सो आपके पास भी अगर फैसिलिटीज हैं और अगर आपके पास टैलेंट मौजूद है तो आप बिल्कुल शेयर करें हमारे साथ. साइकिलिंग में, मार्शल आर्ट्स में, कहीं पर स्विमिंग में अगर किसी आपके पास कोई ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो स्विमिंग में दे आर वेरी गुड, आप प्लीज उनका डाटा हमारे साथ शेयर. Now, based on inter-school competition, best player from each region to be shared with the federal board for the above-mentioned games. जी, जो instructions हैं competition की, they'll be shared by the board soon, and as soon as we'll receive these instructions, we'll be sharing it with you through the letter. Or data of participants to be compiled by all regions
एंड एज PTI और स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको मेंटेन करें, और जैसे भी आपको रिपोर्ट्स फाइनल होती है आप RD के थ्रू हम तक पहुंचाएं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डिसिप्लिनरी एक्शन, फेडरल बोर्ड ने 2 से 3 चीजें हैं जो कि अपने डिसिप्लिनरी एक्शन की बुकलेट के अंदर ऐड की हैं। आप जानते होंगे कि फेडरल बोर्ड में SSC और HSSC के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सो हर लेवल पर एज भी इन्वॉल्व होती है। प्रीवियसली उन्होंने एज लिमिट दी हुई थी, से फॉर एग्जांपल 18+ इयर्स के पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हाउएवर इस साल ये क्लॉज उन्होंने चेंज कर दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड, whosoever is registered in SSC, उसकी एज चाहे 25 इयर्स भी हो, अगर वो रजिस्टर्ड है SSC के डॉक्यूमेंट्स में तो वो SSC लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकता है इन एनी ऑफ द गेम। सो इज द केस विद HSSC। इफ योर स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड इन HSSC, उसके पास बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो उस साल सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन में अपेयर होने का एलिजिबल है, वो स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सो जो एज वाली क्लॉज है ये बोर्ड ने अपने उसमें से निकाल दी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कोई एक्सटर्नल प्लेयर आप अपनी टीम के बिहाफ पर नहीं खिला सकते। एक्सटर्नल प्लेयर से मुराद 2 बातें। नंबर 1, वो प्लेयर जो पिछले साल तो आपके स्कूल के साथ रजिस्टर्ड था, इस साल पास आउट हो चुका है या किसी और स्ट्रीम में जा चुका है, मतलब से आपके पास APS में था, इस दफा वो पंजाब स्कूल एंड कॉलेजेस में, पर आपको पता है मेरे क्रिकेट का बहुत अच्छा बच्चा था, आप उसे कहें जी इस साल मेरे स्कूल से मेरी तरफ से जाके खेलो। नो, अगर आप किसी को हायर करते हैं, किसी एक्सटर्नल प्लेयर को, चाहे प्रीवियसली वो आपका प्लेयर रहा हो, लेकिन अभी उसके पास आपके स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं है बोर्ड का, आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और वो ये है कि आपके स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज होगी और आपके स्कूल को आने वाले पूरे 1 साल के लिए किसी भी किस्म के लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के वेन्यूज से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। सो ये गलती आपने नहीं करनी। सिमिलरली अगर बच्चा पास आउट हो चुका है, आपके अपने स्कूल का था, पास आउट हो चुका है, अब आप उसको अपनी गेम में शामिल नहीं कर सकते, अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास उस साल का फेडरल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं होगा। आप ये अब क्वेश्चन ध्यान में आता है कि बोर्ड को कैसे पता लगेगा। बोर्ड को ऐसे पता लगता है कि वहां पर इवेंट से पहले वहां पर एक पूरी कमेटी बैठती है, जिनके पास, जहाँ पे बोर्ड के मेंबर्स भी होते हैं स्पोर्ट्स के, और इसके अलावा स्कूल्स के भी डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। सो वो वहीं पे बैठ के कंप्यूटराइज्ड वहां पे नंबर एंटर करें, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और ईयर स्पेसिफाई हो जाता है कि ये इस साल का बच्चा है या किसी और ईयर का बच्चा था। सो उस वक्त की शर्मिंदगी से बचने के लिए ज्यादा बेहतर है कि पहले ही फेयर और जस्टिफाइड सिलेक्शन करें बच्चों की और अपनी टीम्स फॉरवर्ड करें। मोर ओवर, जब भी किसी एक्सटर्नल कंपटीशन में जाएं खेलने के लिए, चाहे लोकल लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, हमेशा APSACS की सेंट्रलाइज्ड कलर किट जो स्पोर्ट्स की है उसको वेयर करवाएं अपने बच्चों को। रंग बिरंगी कपड़ों में प्लीज बच्चे पार्टिसिपेट ना करें। जी नेक्स्ट कीजिएगा। These are the next one. These are the 4 documents that are mandatory to be taken along by the team. Number 1 is the school ID card. Number 2 is federal board registration card. Number 3 copy of the जो आपका स्कूल है, जो भी स्कूल है, उसका फर्स्ट टर्म का प्रोग्रेस रिपोर्ट या मार्कशीट, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेरेंटल कंसेंट फॉर्म। इसमें पेरेंटल कंसेंट फॉर्म भी आता है, इसमें प्रिंसिपल कंसेंट फॉर्म भी आता है। प्रिंसिपल अपना कंसेंट तभी देगा जब पेरेंट की तरफ से कंसेंट फॉर्म रिसीव हुआ होगा। So whether parental or principal, it is mandatory. याद रखें, वहां की वेरिफिकेशन कमेटी बच्चे को पार्टिसिपेट करने नहीं देगी अगर कंसेंट फॉर्म मिसिंग होगा या इन चारों में से कोई एक चीज भी मिसिंग होगी। सो इसको आपने इंश्योर कराना है once your student or team is going to participate in IBCC or in federal board competitions. All expenses of traveling and boarding lodging for FBIC competitions will be borne by board, और IBCC या किसी और के लिए you have to coordinate with APSACS, formations and APSACS मिलकर इसके सारे traveling expenses को हम bear करेंगे। पोस्ट इवेंट रिपोर्ट्स एंड पिक्टोरियल एविडेंसेस पॉलिसी में हमने गाइडलाइंस दी हुई हैं। अपने इवेंट्स के अलावा एक्सटर्नल जिस इवेंट पे भी आप जाएं, काइंडली उसकी रिपोर्ट, प्रॉपर फॉर्मल रिपोर्ट उसकी जनरेट करें और उसके एविडेंसेस, पिक्टोरियल एविडेंसेस हमारे साथ शेयर करें। इन टर्म्स ऑफ पिक्टोरियल एविडेंसेस, जी ये वही है कि इनकी सिलेक्शन करें और इनके एविडेंसेस हमारे साथ शेयर करें। नेक्स्ट वन, in case of pictorial evidences we need these 5 things. Number 1 is the ceremony, sports ceremony, जो कि usually किसी भी इवेंट के स्टार्ट में होती है। The chief guest, चाहे वो आपका इंटरनल चीफ गेस्ट हो चाहे एक्सटर्नल चीफ गेस्ट हो, उनकी फोटोग्राफ। 10 pictures during the activity and match, ठीक है, जब बच्चे खेल रहे हो, बच्चे खेलने की तस्वीरें हमें चाहिए होती हैं। Next one is the prize distribution ceremony.
and the video of the final match or winning moment. In case your team or your school has participated or have reached the winning moment, तो kindly उसकी एक छोटा सा clip 1 minute 2 minutes का clip बनाकर it will be appreciated कि अगर आप हमारे साथ videos भी share करें. And all these things should be in the form of soft copy और ये A&E department को आप exams वाले email address के ऊपर forward करेंगे. हमने sports का email address भी बना लिया है, policy booklet के अंदर sports का email address भी mention है, आप उस पर भी इसको forward करें. That is all from our side. I hope the things are clear to you. If you have any question, number one, you can unmute your mic and ask one by one, or you can write your questions in the chat box. We are going to answer all these things, all your questions or queries. So far, chat box में we have not received any question. तो या तो समझ नहीं आया या फिर सब समझ आ गया. If there is any question, please unmute your mic and you can ask. So I think there is no question from your end. Thank you so very much. जी बरूथा, APS बरूथा ने hand raise किया. जी APS बरूथा, please unmute your mic. Assalamu alaikum. Ma'am, chat box is disabled, so that's why you got no question. Chat box is disabled, ma'am. That's why you got no question. No question. Chat box disabled है, तो इसलिए Chat box is disabled, ma'am, by your side. क्यों disabled? क्वेश्चन आप यहाँ पूछ ले बेटा, कोई इशू नहीं. आप क्वेश्चन पूछ लें. If you have any question, you can ask directly. Yes. Okay, ma'am, no issue. Okay, ma'am, हम जो है वो तरबेला से रीजन हमारा जो है वो तरबेला है, तो इंशाल्लाह जो अभी स्पोर्ट्स से इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाले हैं, अभी जो 4 सितंबर से 9 सितंबर को इंशाल्लाह जो है वो कंडक्टेड होने हैं. अभी तक हमें कोई प्रॉपर लेटर रिसीव नहीं हुआ, मतलब आरडी की तरफ से. तो इज इट हमें अपनी तरफ से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या उनके लेटर का वेट करें? आप आरडी से कोऑर्डिनेट करें, आरडी साहब को कहें कि क्योंकि इंटर स्कूल है विद इन द रीजन तमाम स्कूलों का होना है, तो उसका कोई प्लान आपके साथ शेयर कर दें. अगर नहीं है तो बिल्कुल आप उनको बता दें, एक दफा उनके साथ बातचीत कर लें, क्योंकि ये आरडी लेवल के ऊपर हो रहा है ना, ये सेक्रेटेरिएट आपको नहीं भेज सकता. हम सिर्फ स्लॉट आइडेंटिफाई करते हैं इंटर स्कूल का, बाकी आरडी के डोमेन में आ जाए. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. यू वेलकम. जी, एनी अदर स्कूल? अगर चैट बॉक्स में वो डिसेबल हुआ है, आप नहीं लिख सकते, तो काइंडली आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें. चैट बॉक्स भी इनेबल हो गया. अगर आपका क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज राइट देयर. आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. पॉलिसी को प्लीज गौर से पढ़िएगा, और अगर आपके पास फर्दर सजेशंस हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव दिस थिंग, या समझते हैं कि अभी भी कोई बात है जो कि क्लियर नहीं हो रही है या फर्दर क्लैरिफिकेशन इसमें चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज राइट दिस थिंग टू योर आरडी, और आरडी से कहकर ये बात आप हम तक पहुंचा सकते. इज देयर एनी प्लान फॉर ट्रेनिंग ऑफ पीटीआईज? जी इंशाल्लाह ये हमारा वे फॉरवर्ड है. अगले साल इंशाल्लाह, इस साल क्योंकि थोड़ा सा एकेडमिक्स का इशू हमें आ रहा है, सो अगले साल से इंशाल्लाह हम पीटीआईज की ट्रेनिंग भी कंडक्ट कराना शुरू करेंगे. ठीक है, वो हम प्लान बना रहे हैं. हम गेम वाइज उनकी मल्टीपल ट्रेनिंग्स एट मल्टीपल फोरम्स इंश्योर करवाएंगे इंशाल्लाह. जी, एपीएस गर्ल्स सियालकोट, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया था और फिर वो डिसअपीयर हो गया. Yes, ma'am, it's cleared. Actually, we asked in the text. ओके, ठीक है. You're welcome. So I think that is all from our side and your side. Thank you so very much for your patience and presence. Please अपने अपने लेवल के ऊपर जैसा पॉलिसी में दिया हुआ है, ये जो गाइडलाइंस हमने आपके साथ शेयर किया है, रियलिस्टिकली इसको करवाएं. हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं. गेम्स बच्चे एंजॉय करते हैं, ठीक है, इसमें उनको पैनिक नहीं करना या उनको परेशान नहीं करना. आपने अपने लेवल पर इतने अच्छे तरीके से कराएं कि बच्चे इसमें फर्दर अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, उनको अच्छी लगे गेम्स कंडक्ट कराना. ठीक है, सो थैंक यू सो वेरी मच. जूनियर लेवल के ऊपर, जूनियर लेवल में है ना आपके पास, आप इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं ना जूनियर में, उनके लिए आगे इंटर स्कूल नहीं करवाते हम, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं. इतने बच्चों के लिए स्कूल स्पोर्ट्स डे होता है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स 2-3 इवेंट्स में आप करा लें. आई थिंक दैट इज इनफ फॉर देम. आप बिल्कुल करवा सकते हैं विद इन द स्कूल अगर आप कोई इवेंट करवाना चाहें, लेकिन अपने स्कूल के अंदर ही, अपने हाउसेस के दरमियान करवाएं. ठीक है.
वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना थोड़ा अवॉइड करवाते हैं। फिर जब इंशाल्लाह वो 5th ऑनवर्ड जाते हैं, 6th ऑनवर्ड, तो फिर हम उनको डिफरेंट मल्टीपल फर्म्स पे लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम आवर साइड।